हाँ तो सांडगे साहब, आपका तो प्रमोद पति से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा, वर्किंग रिलेशन। मेरा और पति साहब का पहला मुलाकात हो गया 1961 में, व्हेन आई जॉइंड कार्टून फिल्म यूनिट, December 61. दैट टाइम ही वॉज ऑफिसर इन चार्ज। और फॉरेन से प्राग से ट्रंका उनके गुरु थे, उधर पपेट का एनिमेशन का स्पेशलाइज करके ही हैज जॉइन फिल्म डिवीजन। आई थिंक इट वाज इन 1959, मोस्ट प्रॉब्ली ही जॉइंड एट दैट टाइम। आई जॉइंड फिल्म डिवीजन आफ्टर 2 years. He was that time officer in charge of cartoon film unit. While you joined there, Uh, while you joined, he was already he there. was already there. What is your background? I was just joined there as a artist grade 2, lowest post in the cartoon film unit. That was the lowest post in the animation department. Also, you are from JJ School. हाँ, after JJ School apart, I joined there. उसके बाद How did you join? कैसा हुआ आपका join? Did he interview you? Pati was there actually at the time of interview. I remember Pati was there. There are 3-4 Candidates. Candidates. There are 6-7 candidates, but Pati was one of them who was taking the interviews. Mr. Gokhale was also there, and some administrative officers. So I have selected as a artist grade 2, the lowest post of the cartoon film unit. When I joined there, I was not knowing his background. But I was not even knowing who is Mr. Pati. But after 1 or 2 months, I came to know that he has came from the Prague, and he has studied in Tranka studio. The Tranka, who is the best puppet animator in the world, and he has got training from Mr. Tranka. And he came here and joined in cartoon animation films. Pati was also wanted to start some puppet animation films in the film division, but unfortunately it was not happened. When I joined there, I was not knowing anybody. I was also new. There were nearly 8 to 10 artists working already in the cartoon film unit. When Pati joined, after 1 or 2 years, he decided to expand the animation department. That was his most important contribution in the film division, especially the cartoon department. That time, actually, there was only 2 animation short films productions. Every year, there was only 2 films. उसके बाद पति हैड डिसाइडेड दैट इट शुड बी डबल, मिनिमम डबल. तो नेचुरली द स्टाफ वर वेरी 8 to 10 आर्टिस्ट वॉज देयर, सो ही हैज डिसाइडेड टू एक्सपांड द डिपार्टमेंट. तो पति साहब ने एडवर्टाइज, पहले 2 ही एनिमेटर थे, असिस्टेंट एनिमेटर. चीफ एनिमेटर वॉज मिस्टर गोखले एंड मिस्टर डॉलिंग एंड मिस्टर श्रीनिवासन. ये 2 असिस्टेंट एनिमेटर थे. So he had decided to expand the post, and there were 10 artists and it becomes 32 artists. So he has given that much big scope for the artists. तो एडवर्टाइज हो गया. यूपीएससी के पास से भी कुछ क्लास 1 ऑफिसर्स की जो पोस्ट थे, स्पेशली एनिमेशन इन बिटवीन एनिमेटर, दैट इज़ एक्चुअली असिस्टेंट एनिमेटर. तो वो सब एडवर्टाइज होकर एक्सपांस हो गया. और जो प्रोडक्शन था एनिमेशन का, 2 एनिमेशन फिल्म हर एक बरस में बनते थे. इट स्टार्टेड बिकमिंग 4, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर पति. पति नहीं होते थे तो इट वाज नॉट पॉसिबल. तो ही हैज़ गॉट दैट करेज कि नहीं, हमारा कार्टून डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. तो he has got that vision, and that vision was very powerful, and his willpower was also very powerful. तो वो पहले हमारे पास एक ही कैमरा था, that was also given by American gift, Acme कैमरा. It was a compact कैमरा. वो कैमरे के पास एक हम सब शूटिंग करते थे, छोटा सा कैमरा था.
So Pati had decided when we have to produce double the productions, naturally he has asked for one more camera, and that is Acme camera. तो वो Acme camera भी only because of Pati we have got the Acme camera. No, not Acme camera, Oxbury camera, sorry. So पहले हमारे पास था Acme कैमरा, छोटा सा गिफ्ट था वो, अमेरिका से आया था. उसके बाद पति ने ऑक्सबरी कैमरा परचेज किया, एंड इट वाज ए वेरी बिग कैमरा एंड नाइस कैमरा, एंड दिस वाज हैपन ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर पति. कोई दूसरा आदमी के पास जो कोई ऑफिसर होता था तो वो मुझे नहीं लगता था कि वो इतना, ही हैज़ गॉट दैट करेज, और वो जो करना चाहते थे वो करते ही करते थे, कैसा भी करो. ही वॉज आफ्टर दैट. तो उसके बाद उसका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो 8-10 आदमी थे एनिमेशन डिपार्टमेंट, इट बिकम्स 32. 2 इन बिटवीन असिस्टेंट एनिमेटर थे, वो 4 बन गए, 5 बन गए. बाद में आर्टिस्ट का पोस्ट भी 2-3 था, 10 बस हो गए, 15 बन गया. ऐसा वो एक्सपांस करके उसने बहुत अच्छा ये एस्टेब्लिश कर दिया एनिमेशन. और वो जब जॉइंट हो गए थे तो उस टाइम पहला एक फिल्म उसने बनाया था, दैट टाइम आई वाज नॉट देयर, पर वाइव्स एंड वाइव्स फिल्म का जो प्रोडक्शन चालू किया था, दैट टाइम आई हैड जॉइंट. वो वाइव्स एंड वाइव्स फिल्म एनिमेशन फिल्म्स का जो डिज़ाइन था पहला, पति साहब ने जो पहला ओल्ड डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन सब उसने पहला पति आने से पहले वो स्टोरी बोर्ड वो बना के रखे हो गया था. पति आने के बाद वाइव्स एंड वाइव्स फिल्म का कम्प्लीटली है चेंज पैटर्न. डिज़ाइनिंग का पैटर्न था वो हमारा था एक्चुअली डिस्नी टाइप का जरा एनिमेशन का, कन्वेंशनल टाइप एनिमेशन करते थे हम. तो उस टाइम जब पति ज्वाइन किया तो ही हैज चेंज दैट स्टाइल. टोटली कन्वेंशनल स्टाइल तो होते थे, लेकिन पति हैज़ व्हाट इज दैट विजन, ग्राफिक स्टाइल का सिंप्लीफिकेशन, बैकग्राउंड का भी सिंप्लीफिकेशन, कैरेक्टर डिज़ाइन का सिंप्लीफिकेशन. ही हैज़ डन दैट. Actually, he has changed entirely designing pattern of the films, and I think Mr. Ramon has given contribution for that, preparing the characters. तो वाइव्स का जो कंप्लीट आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्नी टाइप से अलग ढंग का वो डिज़ाइन है. उसका एनिमेशन का पैटर्न भी अलग है. इट इज़ नॉट ए वेरी 3D टाइप ऑफ एनिमेशन. Little bit flat and little bit animation, simple animation, not complicated animation. So that was the Mr. Pati's vision. Because of him, he has started that new ideas of designing, the character designing, style of animation, apart from the conventional style. So that was his main important contribution to the cartoon film division. उससे पहले हमारा फिल्म डिवीजन का बाहर के भी कुछ एनिमेशन फिल्म बनते थे, लेकिन दैट वाज लिटिल बिट क्रूड एंड समथिंग लाइक डिस्नी टाइप, थोड़ा सा वो राउंड स्टाइल का सब एनिमेशन था. लेकिन पति ने डिज़ाइन का जो सेंस था, उसका सेंस तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी के पास है वो. इट वाज इन नियरली 50 years बैक. अभी भी वो इतना डिज़ाइन का सेंस अभी भी हमारे लोगों के पास आया नहीं है. तो कितना आगे था उनका सोचने का तरीका देखिए. तो वो तो इम्पोर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन है. ये दिस एनिमेशन डिपार्टमेंट का एक्सपांशन करने के लिए ओनली पति वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ही हैज़ टेकन दैट इनिशिएटिव एंड ही हैज़ वेरी झील टू वर्क फॉर द एनिमेशन. ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फिल्म्स एंड एनिमेशन फिल्म्स. सो ये तो बहुत अलग टाइप के आदमी थे. ऐसा होना बहुत मुश्किल है. उसके बाद इतना एक्सपांशन होना बहुत भी मुश्किल
हो गया अभी तो आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपन टू द कार्टून डिपार्टमेंट. It is No, apart from the appointing artist, what are the other expansion he did? yeah. Camera editing. As that I told you, no, there was only one Acme camera. Then when he had decided to expand the animation department, he has purchased one new Acme Oxbury camera, and that was there are two cameras then, Acme as well as here. So that was also one camera. There was special editing department. He has established in the cartoon department, mainly for the animation productions. There was one assistant editor and editor. ये तो पहले इतना नहीं था कोई कि बाहर अपने जो एडिटिंग डिपार्टमेंट से उधर जाकर फिल्म्स एडिटिंग करते थे, लेकिन ही हैज़ मेड वन यूनिट इन कार्टून डिपार्टमेंट इटसेल्फ, इन दैट रूम ओनली. दैट कार्टून डिपार्टमेंट में उसका एडिटिंग का पैटर्न था. तो ये तो उसका मानना पड़ेगा कि वो था, इसलिए एनिमेशन का उस टाइम इतना एक्सपांशन हो गया. दूसरा कंट्रीब्यूशन पति साहब के पास, अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और एनिमेशन फिल्म्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत बोलूँगा, लेकिन दूसरा एक उसका कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि फिल्म डिवीज़न एज ए होल खाली अपना कार्टून डिपार्टमेंट का नहीं है, लेकिन अभी जो नया बिल्डिंग बन गया है अभी उसका और थोड़ा रिनोवेशन हो गया है. बट उस टाइम नया कंप्लीट जो अभी जो बिल्डिंग है हमारा टेक्निकल स्टाफ का जो बिल्डिंग है, दैट वाज हिज इनिशिएटिव. और एंट्रेंस का जो नया बिल्डिंग अभी उस टाइम ये दोनों बिल्डिंग, बिकॉज ऑफ हिज इनिशिएटिव ही हैज़ टेकन कीन इंटरेस्ट टू एस्टेब्लिश दिस टू बिग बिल्डिंग्स. अंडर हिज गाइडेंस दैट बिल्डिंग वॉज स्टार्टेड. बाद में अदर लोग भी आ गए, ये उसने बिल्डिंग तैयार हो गया वो तो अलग है, लेकिन उस लाइन में जाकर अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग ये जो कंप्लीट नया स्ट्रक्चर ये कर, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एक नया बनाने का, टेक्निकल लोगों के लिए आने अलग एक ये बनाने का, इट वाज हिज इमेजिनेशन. तो ये कंट्रीब्यूशन तो बहुत रेयर है. उसके बाद अभी तक ज़्यादा तो चेंजेस नहीं हो गया, बिल्डिंग वही है, थोड़ा सा रिनोवेशन किया है, ज़रा मॉडर्नाइजेशन किया होगा, बट इट वाज हिज प्लानिंग. ही हैज़ टेकन द इनिशिएटिव. दूसरा एक मैं और एक आपको कहने के लिए, इफ़ यू परमिट मी, कि दूरदर्शन वॉज एस्टेब्लिश ऑलरेडी. आवर फिल्म डिवीजन वॉज ऑलरेडी देयर, फुल्ली वर्किंग कंडीशन में था. तो नया जब दूरदर्शन आ गया तो दूरदर्शन का उधर सब मिनिस्ट्री से एक ये आ गया, प्रपोजल आ गया कि वाई नॉट जॉइन फिल्म डिवीजन एंड दूरदर्शन. फिल्म डिवीजन शुड टेक इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश दूरदर्शन ऑल ओवर इंडिया. एंड पति हैज जंप फॉर दैट. बोलता कि बहुत अच्छा है कि वी विल डू इट. But unfortunately, there are some other officers, those who do not want to take that responsibility. Burden है ना, अपना खुद का जो बिल्डिंग है, अपना प्रोडक्शन है, वो इतना बड़ा फिल्म डिवीजन का ऑल इंडिया बेसिस पर उनका प्रोडक्शन का हाउसेस थे. उसके बाद ये भी लेने का अपना दूरदर्शन का सब केंद्र, नया नया जगह सब एस्टेब्लिश करने का, तो ये वही जिम्मेदारी वही फिल्म डिवीजन के ऑफिसर्स लेने के लिए तैयार नहीं थे. बोलते कि नहीं वो सेपरेट कर दे दो. बट पति वॉज फॉर दैट. ही हैज़ फाइट अप टू द लास्ट मिनट, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट सक्सीडेड. तो उसका इमेजिनेशन तो इतना ये था कि आप यू कांट इमेजिन. उसका हमेशा एक ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो मूवमेंट ज़्यादा अच्छा हो गया अपना इंडिया में, अभी भी इतना नहीं है, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा सा मूवमेंट मिल गया है, बिकॉज मिस्टर पति हैज़ टेकन दैट इनिशिएटिव. डॉक्यूमेंट्री फिल्म मूवमेंट के लिए
and especially for that experimental films. Experimental film ka to he is the pioneer, according to my opinion. He has started that movement in the film division. There was a very strong opposition for doing some experimental films. हाँ, बहुत opposition था उस time. Of course, every organization में एक group होता है, एक organization का एक modernization का, experimental करने का वाला, न्यू वे ऑफ थिंकिंग का एक ग्रुप होता है और एक कन्वेंशनल कैप होता है. इट इज ऑलवेज देयर, ऐसा ये नहीं है. लेकिन ही हैज स्टार्टेड दैट मूवमेंट. मिस्टर पति हैज स्टार्टेड दैट मूवमेंट in film division or in India? According to my opinion, based of my knowledge, in India he has started at experimental films. बाहर experimental film कौन कर सकते थे बोलिए ना, because it requires money. And experimental may succeed, may not succeed. तो इसलिए there was opposition only because the people was saying, those who are opposing the पति साहब का ये जो proposal था, they are saying that you are spending money, government's money unnecessary, it is a waste of money. So that was one group. लेकिन पति साहब ने बोला कि नहीं, बिकॉज टू हैव सम मोर एडवांस आवर टेक्निक वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल मे फेल, बट वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट. जितना भी अपना दुनिया में रिसर्च का जो डेवलपमेंट का हर एक का इसमें होता है, वैसा इधर का क्यों नहीं होना चाहिए. दैट वॉज पति's थॉट. ये का सीधा नहीं था. फिल्म डिवीज़न का वो लोगों को पता थे कि गवर्नमेंट का पैसा है, ये है, आप वेस्ट कर रहे हैं ये करके. लेकिन बोलता है कि कौन सा भी बड़ा कंपनी जो है, जो रिसर्च का उनका डिपार्टमेंट रहता है आरडी, उसका पर्पज़ क्या रहता है, क्या दे आर एवरी एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल? नॉट, इट इज़ नॉट. बट उसके आगे आप जा सकते हैं, यू कैन गो वन स्टेप फर्दर. सो ये तो ओनली ही कैन इमेजिन दैट टाइप ऑफ थिंग्स. And he has done a few experimental films, which is अभी भी वो लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है वो फिल्म्स. 50 बरस पहले उसने जो किया है, 65 के आगे मैंने जो चालू किया है, नियरली 50 ईयर्स हो गया. अभी भी वो लोगों को ये लगता है अरे वो उस टाइम वो इतना एक्सपेरिमेंट किया. वो अभी भी कोई लोगों को समझने में बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो इंडियन में डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मूवमेंट के लिए अभी तक जितना ये चाहिए था, इम्पोर्टेंस देना चाहिए था डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक्टिविटीज़ के लिए, तो पति साहब ने वो किया. बाद में वो फिर और बताने के बाद ये हो गया. लेकिन पति वॉज थिंकिंग दैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज़ वेरी पावरफुल मीडिया फॉर चेंज द एंटायर थॉट ऑफ द ऑडियंस. इंडियन ऑडियंस हो, फॉरेन ऑडियंस हो, किधर का भी ऑडियंस हो, वो जो थॉट्स है वो वी कैन गिव थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज. और वो डॉक्यूमेंट्री अपना इंडिया में पावरफुल मीडियम है. वो लोगों के पास ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनना चाहिए. दैट वाज हिज आइडियाज़. लेकिन बाद में अभी भी देखो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अपना इंडिया में इतना ये नहीं मिलता है. Nobody is actually thinking that level. Innovative. हाँ, इनोवेटिव. वो पति साहब का जो थिंकिंग था वो भी अभी भी बहुत कम लोग सोचते हैं. अभी नया कुछ लोग आते हैं, कुछ कर रहे हैं. लेकिन देर आर टू थिंग्स. कौन सा भी फिल्म मेकिंग इज नॉट इजी जॉब. इट रिक्वायर्स मनी. लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर फॉर मेकिंग एनी फिल्म. शॉर्ट फिल्म, बड़ा फिल्म हो, छोटा फिल्म हो, तो वो स्पेंड करके वो करने वाले पागल कितने लोग हैं? नहीं है. ओनली गवर्नमेंट कैन ऑफर दैट, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है एजुकेशन के लिए, इसके लिए वो कर सकते हैं. लेकिन नहीं करते लोग. हाँ, फिर भी नहीं करते. वही तो मुश्किल बात है. और पति का दिमाग में वही था, बस वही करने का. तो वो तो हैंड्सअप, उसको तो ये करना पड़ेगा ही. ऐसा आदमी होगा ही कि नहीं अभी? आई डोंट थिंक. 50 साल पहले उसने जो किया था, अभी भी वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं. इवन टुडे नो बडी इज थिंकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स. ये कौन सा ईयर है अभी?
अभी देखो 216, तो उसका थॉट देखो, उसका इमेजिनेशन देखो, उसका थिंकिंग पावर देखो। तो ये तो बहुत अभी ऐसे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ऐसा, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि अभी जो दुनिया में सब हो गया उसके बाद कोई होने वाला नहीं, लेकिन अभी तक नहीं होया है, अभी होगा आगे। ऐसा आई एम नॉट सेइंग दैट नो बडी विल बी देयर विल बी, बट वो लेवल पर अभी तक तो नहीं है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। पति साहब का लेवल पर अभी तक आई हैव नॉट सीन हिम, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर हिम। तो ये तो बहुत मुश्किल था। दूसरा उनका एक कैरेक्टर मैं आपको बोल देता हूँ, इफ़ यू परमिट मी। हम जब नया नया आर्टिस्ट गए थे उधर फिल्म डिवीज़न में, जब हमारे साथ और भी थे 30-32 आर्टिस्ट सब काम करते थे, तो जब वो आकर देखते थे सब ऐसा किसने क्या किया है क्या है, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो भी बोलते हैं अरे वाह वंडरफुल, दैट वॉज हिज वर्ड। ये कभी नहीं बोलते अरे क्या बनाया, ज़रा ये करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा काम करो, ये क्या ड्राइंग बनाया है, ये क्या अच्छा डिज़ाइनिंग है। ऐसा कभी किसी को डिस्करेज नहीं करते थे, हमेशा उनको प्रोत्साहन देते थे, बोलता है नहीं करो बहुत अच्छा है अच्छा है, और बाद में बोलते थे थोड़ा सा ऐसा करके देखो, ट्राई करो, इट मे इम्प्रूव अगेन, इट विल मोर इम्प्रूव। तो वो कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि क्या बनाया है, कितना भी बड़ा खराब होगा तो भी उसने कभी डिस्करेज नहीं किया किसी आर्टिस्ट को। दैट वॉज हिज एक क्वालिटी ऑफिसर के लिए बहुत कम है। कौन सा भी डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, इसका ये क्वालिटी बहुत कम रहती है। दूसरा उसका और एक क्वालिटी कि ही नोज किसके पास से क्या काम करके लेने का है। अभी हमारे यहाँ तो 32 आर्टिस्ट थे, कैमरामैन भी बहुत उधर आते थे, एडिटर भी बहुत थे, हर एक का जो नेचर अलग अलग रहता है, एक जैसा कभी भी नेचर नहीं, हर एक का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट रहता है, माइनस पॉइंट है। नो मैन इज परफेक्ट इन वर्ल्ड, तो ही नोज दैट, लेकिन ही हैज़ गॉट दैट नैक, इसके अंदर अच्छा क्या का है, अच्छा कौन सा चीज़ है कि जो ही कैन टेकअप, वो अच्छा ये लेके वो आगे जाते थे और उसको भी प्रोत्साहन देते थे और वो काम भी होता था, तो डबल बेनिफिट था वो। तो ऐसे ऑफिसर भी बहुत रेयर रहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं अरे क्या एकदम ये कर देते हैं, वो आपको आता ही नहीं है, ये नहीं करता है। लेकिन ये क्वालिटी समझना कि आपके अंदर क्या है और वो बराबर निकाल के लेने का उसके पास से वो गुण उसके पास बहुत अच्छा था। तो ये एक इनका अच्छा क्वालिटी। एज ए पर्सन ही इज़ ऑल्सो नाइस। आई मीन किसी के पास से आई हैव नॉट सीन उसने किसी के साथ झगड़ा बहुत किया है, बहुत तो किसी का ये किया है। देयर वॉज ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। Somebody wanted that it should be conventional routine, but he wanted that some experimentation should be done in documentary films. तो इतना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, बट ऐसा नहीं बोलते थे वो कन्वेंशनल है, वो खराब है और मैं करता हूँ अच्छा नहीं। ही हैज नेवर सेड दैट। ही हैज डन सम गुड कन्वेंशनल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑल्सो। ही जैसा उसने एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज किया है, वैसा वो कन्वेंशनल भी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छा किया है। वो जिसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बट इवन देन द फ्रेम, एडिटिंग, म्यूजिक, ये सब इसमें उसका टच था। और दूसरा उसका स्पेशली कंट्रीब्यूशन और एक है म्यूजिक, इसमें साउंड डिज़ाइनिंग का ऐसा सोचने वाला आदमी। सब अभी कन्वेंशनल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत और ये ऐसा मिक्स करके कोई रूटीन टाइप ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता था। लेकिन पति हैज़ डन एंटायरली चेंज एंटायरली साउंड पैटर्न ऑफ द फिल्म। उसका भी आप फिल्म एक्सप्लोरर देखेंगे तो वो जो साउंड ट्रैक है वो सब रिवर्स उसने ट्राई किया है। Nobody thought, even he has thought that time. And Vijay Raghora was the music director.
वो तो एकदम कन्वेंशनल और शास्त्रीय संगीत का ये था, फैन था, और वो वही बन जाते थे। लेकिन उसको भी कन्विंस करके वो उसने नहीं तो जनरली क्या होता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसा नहीं कैसा डिस्टॉर्टेड म्यूजिक मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन ही कन्विंस और ही हैज शोन दैट इसका इफेक्ट कितना है और साउंड का इम्पोर्टेंस, पति को जितना इम्पोर्टेंस साउंड के लिए उसने दिया है उसने किसी डायरेक्टर ने आज तक मैंने देखा नहीं। फिल्म के साथ, विजुअल के साथ जो ये चाहिए आपका साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, कैमरा एंगल, स्क्रिप्ट, डिज़ाइनिंग, पैटर्न, सब वही है उस। लेकिन ये अपना म्यूजिक के बारे में तो ही हैज़ एंटायरली चेंज दैट एक्सपेरिमेंट, डन द एक्सपेरिमेंट फॉर द हिज फिल्म्स, इवन फॉर रूटीन फिल्म्स ऑल्सो ही हैज़ ट्राइड सम एक्सपेरिमेंट फॉर द म्यूजिक। उसका म्यूजिक का जो सेंस बहुत पावरफुल था। वो डिज़ाइन म्यूजिक के साथ सोचना कि वो विजुअल एंड म्यूजिक इट शुड गो टुगेदर, ही दैट थॉट हैज़ गिवन मिस्टर पति। नहीं तो बाकी क्या बोलते थे आज, हाँ हमारा फिल्म डॉक्यूमेंट्री हो गया है, म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाओ, हाँ दिखाओ, और वो जो देगा तो लगाओ, एडिटर को बुलाओ, एडिटर लगाएगा बराबर। वो म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है कि ये पीस इसके लिए क्या है, ये पीस इसके लिए क्या है, वो इधर लगाओ। एडिटर का था, डायरेक्टर कभी कभी जाता भी नहीं था उधर, क्या लगा है क्या नहीं लगाया वो, बट ही यूज टू सिट अलॉन्ग विद द एडिटर, ही यूज टू सिट अलॉन्ग विद द म्यूजिक डायरेक्टर, क्या चाहिए। तो इतना इन्वॉल्वमेंट फिल्म में ऐसे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। एंड पति वॉज द ओनली पर्सन हु हैज स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फॉर द फिल्म मेकिंग एंड दैट टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो ये तो बहुत अजब ये आदमी थे वो उसका। और मुझे उसके साथ ये सब डिस्कस करने के लिए, उनका काम करने का तरीका सोचने के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला वो मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ उसके बारे में। दूसरा एक था उसका फिल्म का, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ 2-3 फिल्म्स। वन इज़ आबिद, एक दूसरा मेरा स्क्रिप्ट था वन, नेशनल इंटीग्रेशन। तो वो डिस्कशन के लिए एकदम, बोथ द फिल्म्स आर लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल। आबिद वॉज द टोटली एक्सपेरिमेंटल एंड वन विच आई हैव डायरेक्टेड और लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल, आई मीन एज फार एज डिज़ाइन इज कंसर्न। तो उसमें आबिद के टाइम मुझे बोला कि दैट टाइम आई वॉज इन बिटवीन एनिमेटर, असिस्टेंट एनिमेटर। इन बिटवीन एनिमेटर इज़ नॉट राइट, ये आई वॉज एनिमेटर। सो पति हैज़, देयर आर 5 एनिमेटर्स इन कार्टून डिपार्टमेंट, बट ही हैज़ सिलेक्टेड मी, ही हैज़ कॉल मी, बोला कि आज सेंड आप ये आबिद करना है और यू विल बी माई एनिमेटर। तो बोला कि अरे मैं तो एकदम खुश हो गया हूँ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है हम बैठेंगे, मैं आपको बुला दूंगा, डिस्कस करेंगे। दैट टाइम ही वॉज प्रोड्यूसर ऑलरेडी, ही वॉज नॉट इन द टच विथ एनिमेशन डिपार्टमेंट, एंड डायरेक्टर टच नहीं था। तो गोखले वॉज दैट टाइम हेड। तो उसने कहा कि सेनगे को भेज दे दो कि वो ये फिल्म करेंगे। तो मैं चाहता था अभी उनका जो आइडियाज़ है, क्योंकि क्या करना है वो तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैंने बोला कि पति साहब क्या करना है मुझे बोल दीजिए, ये फिल्म के बारे में आपको एनिमेशन एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है, क्या थीम है, क्या स्टोरी बोर्ड कुछ बनाना का है, क्या है कुछ आप बोल दीजिए, वो आई कैन प्रिपेयर द स्टोरी बोर्ड। तो बोला कि पति साहब ने बोले कि चलो ठीक है हम हर एक दिन 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, आप मेरे तो मुझे बोला देते। अभी उस टाइम क्या होता था कि ही वॉज प्रोड्यूसर, ऊपर का पोस्ट पर गए थे। देर आर सो मेनी पीपल वर कमिंग एवरी नाउ एंड देन फॉर सम अदर वर्क, सम एडमिनिस्ट्रेशन, सम प्रोडक्शन वर्क के लिए, तो टाइम ही नहीं मिलता था उनके साथ। जो वो खुद फिल्म डायरेक्ट कर प्रोड्यूस करने चाहते थे एक्सपेरिमेंटल फिल्म आबिद, तो वो डिस्कशन के लिए टाइम ही उनको मिलता नहीं था। पीस ऑफ माइंड भी चाहिए उसको।
तो बाद में उसने मुझे पता शेनगे 2-3 टाइम मैंने आपको बुलाया इधर किया, लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिस्कस कम्प्लीटली ऑफ दैट ये। तो आप ज़रा ऐसा करिए कि इफ़ यू डोंट माइंड आप संडे और सैटरडे मेरे घर में आ सकते हैं क्या? तो मतलब कि ठीक है, आप बोलेंगे तो कभी भी आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आ जाइए। तो 2 दिन मैं पति साहब के घर में इधर था, वो खार का जो ये है ना, उधर था उनका घर था। वो अभी इधर हैदराबाद हाउस में नहीं गए थे। तो 2 दिन मैंने उनके साथ डिस्कस किया। उसने उस टाइम मुझे बोला आबिद का व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ आबिद। तो उसने सब कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स मुझे दिखाए। बोला कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, मॉडर्न टाइप का ही करने का है, और आई वांटेड टू सिलेक्ट वन मॉडर्न आर्टिस्ट एंड उनके साथ एक आबिद करके एक आर्टिस्ट था मेरा क्लास, ही वॉज माई क्लासमेट लकीली। आबिद का जो फिल्म बनाया है ही वॉज माई क्लासमेट। तो उसने कहा कि आबिद करके एक आर्टिस्ट है, ही इज डूइंग सम मॉडर्न पेंटिंग्स and on that basis also we will make use of Mr. Abid also and his painting and some other our ideas। जो प्रोडक्शन का जो उसका जो ये करने का था, आबिद के बारे में कुछ करने का था फिल्म्स। तो मैंने 2 दिन उनके साथ डिस्कस किया। तो पति ने कहा कि वो क्या ऐसा है कि ये जो आबिद जो कैरेक्टर है इट इज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन कैरेक्टर जो है और ह्यूमन नेचर ये रिफ्लेक्ट हो, इंटरनेशनल ऐसा लगना चाहिए कि ये जनरली आदमी का नेचर कैसा रहता है, आदमी का जो है। और इसके अंदर आल्सो उसने मॉडर्न और कन्वेंशनल अपना जो ये जो था फिलोसॉफिकल थॉट, ये दोनों कंबाइन करके मॉडर्न एंड ये फिलोसॉफिकल थॉट, वो उसने कहा कि ये मुझे दोनों आना चाहिए उस आदमी में। और हम जब सब आदमी देखते हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग जगह पर, हम बहुत से अलग अलग हम ये डेली लाइफ में हमारा और आदमी के ये होता है, लेकिन रियल आदमी का जो ये रहता है अंदर का जो है दैट आल्सो कम इन द फिल्म्स। आदमी क्या क्या करता है, जब आदमी दुनिया में आता है तो क्या क्या करता है, तो वो सब जनरली ऐसा हमको कुछ लाने का है, और वो भी एकदम फैंटेस्टिक टाइप से। ऐसा तो लगना नहीं चाहिए कि हम कुछ उपदेश कर रहे हैं, नहीं कुछ खास ऐसा कुछ, लेकिन वो अंडर करंट होना चाहिए उस फिल्म के अंदर। तो आबिद का जो पेंटिंग और ये किया, तो उसमें जो मैंने कहा कि अभी उसका मोमेंट्स क्या, रिसेंटली आप यू आर एनिमेटर, ये मेरा थॉट है वो आदमी के अंदर उधर आना चाहिए। तो आप यू डिसाइड। उसमें दूसरा एक मुझे दिया था, वो चार्ट जो बोलते हैं कि अपना फ्रेम्स एक्सपोज करते का, एनिमेशन फिल्म सिंगल फ्रेम करते हैं ना, तो हर एक का एक 4 का बीट करके ऐसा म्यूजिक का जो वो उस टाइम भी उसने जब शूटिंग से पहले ही उसने कहा कि ये बीट पर आना चाहिए, हर एक फिल्म का 4 का बीट का आपको फ्रेम्स एक्सपोज करने का है। 4 फ्रेम फिर होल्ड, फिर 4 फ्रेम फिर होल्ड, वो जो 4 का पैटर्न में सब फिल्म्स का डिज़ाइन होना चाहिए। दैट वाज ही साउंड का जो उसका थॉट था, वो फिल्म में उसने मुझे उधर बोल दिया। बोला ठीक है, आई विल गिव द मोमेंट्स। उसके बाद मैंने भी थोड़ा उसके बाद जब पति साहब ने इतना मुझे ये भरोसा रखा है, तो मैंने वो बोला पति साहब ऐसा है कि आदमी का तो चेहरे अलग अलग रहते हैं, एक तो चेहरा रहता है नहीं है, दिखने में एक चेहरा दिखता है, अंदर भी दूसरा रहता है, तीसरा में तीसरा होता है। अरे इट इज़ वेरी गुड आइडिया, आप आबिद को एक कलर करो, चेहरा अलग अलग करो, अलग अलग करे, आपका पैटर्न से करो, लेकिन उसका मुखौटा ऐसा अलग अलग दिखना चाहिए। एक ही आदमी का मुखौटा अलग अलग होता है, हमारा जो दिखने में बहुत ऐसा लगता है, लेकिन अंदर में अलग अलग ये रहता है। तो ये वो आपका आबिद फिल्म देखेंगे तो जो आबिद का जो ये किया है, क्लोजअप हमने लिया है, एक्सपोज किया है
ऐसा कलर्स अलग अलग पैटर्न, तो उसमें वो थॉट था उनका पति का, और मैंने बोला कि ऐसा हम करेंगे तो डू इट। आदमी दुनिया में आने के बाद कितना कितना इधर उधर घूमता है, उल्टा सिल्टा कुछ भी करता है, दैट एवरीथिंग इज़ देयर। आप आबिद का कैरेक्टर देखेंगे, इधर जाता है उधर जाता है, उल्टा होता है, ये होता है किधर, यानी आदमी आने के बाद क्या क्या नहीं करता है दुनिया में, सब कुछ को करने के लिए है, दैट हैज़ प्रेजेंटेड देयर। एंड पति साहब ने बोला कि है आप मोमेंट्स आप देख लीजिए, ये आना चाहिए थॉट। बाद में ये लास्ट का भी एक शॉट है, वो आबिद जो है कैरेक्टर, वो आबिद फिल्म का, वो अंदर जाता है, ऐसा एक दरवाजा है जस्ट लाइक ए डोम, ये अपना जो ये करते हैं कि नहीं आदमी को जब दफन करते हैं, तो वैसा ही टाइप का एक ऐसा दरवाजा ऐसा ओपन किया, मॉडर्न है, ऐसा दफन का ऐसा नहीं किया हमने। वी हैव प्रिपेयर ए डोर ओपन होता है, वो आदमी अंदर जाता है, डोर बंद होता है, ख़त्म। बाद में अगेन इट ओपन्स, अगेन इट कम्स आउटसाइड। सो इसका दूसरा एक फिलॉसफी है ऐसा, अपना इंडियन फिलॉसफी, बर्थ एंड रीबर्थ, वही आदमी अलग अलग फिर भी आ सकता है। तो ये सब आदमी का जो मोमेंट्स है, आदमी जो दुनिया में आता है क्या क्या नहीं करता है, वो सब उसमें आना चाहिए, एंड दैट टू इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसा नहीं कि इंडियन आदमी है और फॉरेन का आदमी का ये करने का, हर एक का कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा सब दुनिया में करते हैं। सो दैट हैज़ बीन वी हैव प्रेजेंटेड देयर, एंड दैट पति हैज़ दैट थॉट बिहाइंड दैट आबिद। अभी भी बहुत के लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किया है, क्या उल्टा सुल्टा है, लेकिन उसका, और वो बोलता था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव द स्ट्रेट पाथ लोगों को, जिसको समझ में आएगा समझने दो, नहीं समझने दो छोड़ने दो। उसने मुझे बोला कि आप फिक्र मत करो, यू जस्ट हैव फुल फ्रीडम, एंड ही हैज़ गिवन मी फुल फ्रीडम। इट वॉज हीज एक्चुअली ग्रेटनेस। बीच बीच में हम हमेशा रशीद आते टाइम हम देखते थे, डिस्कस करते थे, तो वो और उसका साउंड का भी देखो, सब वो पहला पैटर्न उसने डिसाइड किया था बीट का, हर एक बीट के ऊपर सब कटिंग का ये करने का भी वो उसका ये था। ये आबिद के बारे में और एक मैं आपको एक कहना ये करता हूँ कि सेट तैयार हो गया था, और हमने एक सेट ऐसा कलर भी किया था, थोड़ा सा एनिमेशन का अपना हमारा मोमेंट का सबसे। एंड लकीली मिस्टर सचित रे फिल्म डिवीज़न को विजिट करने के लिए आए थे, तो किसी ने बोला कि अभी उसको भी मालूम पड़ गया कि पति कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसने कहा कि अब आपका सेट पर मुझे आप कर रहे हैं, ज़रा सेट कुछ किया है ऐसा मुझे सुना है, आप दिखाए मुझे। तो सचित रे आए उधर, सेट के ऊपर देखा, देखने के बाद पति साहब ये हम तो उस टाइम तो बहुत ये थे ना, वो तो सचित रे और पति वो तो दोनों ये बड़े, तो उसने पति ने मुझे बोला कि सत्यराज को मुझे इंट्रोडक्शन कर दिया, ही इज़ द एनिमेटर, ही हैज़ प्रिपेयर द डिज़ाइन फॉर दिस फिल्म। तो उसने कहा कि वेरी गुड पति साहब, यू ओनली यू कैन डू सच टाइप ऑफ फिल्म्स। It was the Mr. Ray's version. You can make only this type of documentary films. सचित रे का ये वर्डिंग ये नहीं था, ये सादा नहीं है वो। सो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अंडरस्टूड मिस्टर पति को समझने वाले लोग बहुत कम उस टाइम भी थे, अभी भी आज भी है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। कभी ना कभी वो तो आएंगे, उसका तो ये है, काम भी उतना बड़ा है किया है उसने। जब रे साहब ने ये बात बताया, हाँ, आपने ये बात की बोलते हुए आप वहाँ थे या नहीं, पति साहब उधर नहीं थे स्टेज पर, हम काम कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। रे ने उसको पति को बोला होगा कि हमको सुना है कि वो कैसा है, तो पति लेके आ गए हमारे सेट के ऊपर, सेटिंग जो लगाया था उधर आकर उसने ये किया ऐसा ऐसा, और मुझे इंट्रोडक्शन कर दिया कि मिस्टर ही इज़ द एनिमेटर, ही हैज़ डन दिस डिज़ाइन।
ऑफ कोर्स मेरे साथ में 2-3 आर्टिस्ट थे, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट टेकिंग ओनली क्रिकेट, बट आई द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन मी. तो वो सब होने के बाद वो पति साहब को उसने कहा रे ने कि यू कैन डू ओनली दिस टाइप ऑफ फिल्म्स एंड सेटिंग्स. कोई बनाए थे ना, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री में तो कोई सोचते ही नहीं थे. तो वो देखो 40-50 साल का पहले का ये था, अभी भी कोई सोचते नहीं ऐसा. तो क्या आदमी के ये था, इमेज था. देखो दूसरा अभी गोइंग बैक टू आवर कार्टून डिपार्टमेंट, व्हेन आई जॉइन 3-4 years he was there as an officer in charge, then he becomes a producer. तो उस टाइम का सब डिज़ाइन जो किया था, नॉट चीफ प्रोड्यूसर नहीं, ही वॉज नॉट चीफ प्रोड्यूसर, ही वॉज नॉट प्रोड्यूसर, ही वॉज ऑफिसर इन चार्ज. 3-4 बरस के लिए ही वॉज ऑफिसर इन चार्ज इन कार्टून डिपार्टमेंट इन द बिगिनिंग. आई थिंक इट विल बी 59 to 64 तक होगा. वो 4-5 बरस का जो दूसरा एक उसका एक कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने रूरल के लिए 2-3 फिल्म बनाया, और उसका डिज़ाइन भी आप देखेंगे तो वेरी फ्लैट डिज़ाइन, ऐसा कुछ डायनेमिक ऐसा एंगल्स नहीं थे, कुछ ये नहीं था, सिंपल बट इजी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि ये दोनों फिल्म 2-3 फिल्म जो थी उसने जो बनाई थी, बिकॉज दैट स्क्रिप्ट रिक्वायर्स सिंप्लिसिटी एंड रूरल ऑडियंस इज द टारगेट ऑडियंस वॉज द रूरल ऑडियंस. तो सॉरी, तो वो हिसाब से ही हैज़ प्रिपेयर द डिज़ाइन, एंड उसका कैरेक्टर भी ऐसा कि आप देखो इंडियनाइज कैरेक्टर जो किया है, उस उधर 4-5 कैरेक्टर्स है अलग अलग वो फिल्म्स में. तो वो जो कैरेक्टर्स है वो टोटली वॉल्ट डिज्नी का टाइप का बिल्कुल हट के है, टोटली इंडियनाइज है. एंड उसका कंट्रीब्यूशन और उसका क्रेडिट में आई विल गिव टू मिस्टर राममोहन, बट मिस्टर पति हैज़ टेकन फ्रॉम हिम, बोला कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, एंड ही नोज ओनली राममोहन कैन डू दिस टाइप ऑफ गुड जॉब. तो इसको मालूम था कौन क्या कर सकता है, कैसा अच्छा कर सकता है. तो उस टाइम वो जो कैरेक्टर उसने जो बनाया है, इंडियनाइज कैरेक्टर, उसका जो ब्यूटी है, सिंप्लिसिटी है, और प्रेजेंटेशन जो अपना कहने का जो मैसेज देने का जो है, वो इतना सिंपल और सीधा है कि एनी रूरल ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड दैट सब फिल्म्स. तो उनको ये भी था कि कौन सा ऑडियंस के लिए हम क्या बनाना चाहते हैं. रूरल ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं, जनरल ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल करने के लिए चाहते हैं, का क्लासिकल म्यूजिक के लिए फिल्म हम जब बनाते हैं तो कौन सा ऑडियंस है. तो ही यूज्ड टू डिज़ाइन द फिल्म, नॉट फ्रेम, टोटल फिल्म का डिज़ाइन है ना, वो हिसाब से वो सब प्लान करते थे. हर एक फिल्म का जो डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग अप्रोच, ये सब वो पति साहब का दिमाग में ये था. नहीं तो जनरली क्या होता है, एक आदमी का स्टाइल रहता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ, नहीं तो अपना रेगुलर फीचर फिल्म का बनाओ, हर एक डायरेक्टर एक स्टाइल रहता है. तो बट ही हैज़ नॉट अपना खुद को ऐसा बांध के नहीं लिया, यही फिल्म यही स्टाइल में हम सब करने का है. ही हैज़ डन एक्सपेरिमेंटल फिल्म, ही हैज़ डन फिल्म फॉर द रूरल, ही हैज़ मेड फिल्म फॉर द म्यूजिशियंस, म्यूजिक का शास्त्रीय संगीत के ऊपर, और जनरल डॉक्यूमेंट्रीज. तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग पैटर्न से अलग प्रेजेंटेशन करना, और उस अलग हर एक फिल्म का अलग सोचना, वो पति ही कर सकते हैं. वो नहीं तो कौन सी फिल्म जो रूरल एरिया के लिए? अभी मसलूबे मछलीदार, और दूसरा आणखी एक, आप फिल्म बोल दीजिए, मनसूबे मछलीदार. हाँ, और दूसरा एक था क्या अभी आपको दोबारा फिल्म बोलिए ना. 2-3 थे. मनसूबे मछलीदार, बिल्डिंग नेस्ट, नंतर और एक था
2-3 फिल्म आप लिस्ट. हेल्दी एंड हैप्पी, हेल्दी एंड हैप्पी ऑल्सो देयर. हेल्दी एंड हैप्पी, हाँ. ऐसे सभी जो फिल्म्स है ना उसका कैरेक्टर देखो, इंडियनाइजेशन है. आप ये सब फिल्म्स का हर एक का ऑडियंस अलग अलग है, तो वो ऑडियंस का हिसाब से वो फिल्म उसने बनाया है. वाइफ्स का डिज़ाइन अलग है, मछलीदार का डिज़ाइन अलग है. मछलीदार तो रूरल के लिए थे, वाइफ्स एंड वाइफ्स वर फॉर द जनरल ऑडियंस. तो ये उनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका हर एक फिल्म का जो ये करने का सोचने का तरीका वो बहुत अलग था. आप रेफर कर लीजिए, फिल्म का नाम है, पढ़ पा रहे हैं? अभी देखो, दिस आवर इंडिया ये टोटल डिज़ाइन के ऊपर है, फ्लैट डिज़ाइन के ऊपर किया है. देन वाइव्स एंड वाइव्स जनरल ऑडियंस के लिए है, ऐसा रूरल का खास नहीं है, जनरल ऑडियंस के लिए है. दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये वर्कर के लिए है, खाली इंडियन जो वर्क करने वाले जो मजदूर लोग हैं उनके ऊपर. तो ये सब उनका हिसाब से डिज़ाइन, उसका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द डिज़ाइन एंड एनिमेशन, ये अलग. आप ऐसा एक नहीं लगेगा कि यही आदमी ने कि यही टाइप का फिल्म किया है. तो ये सब उनका ये कंट्रीब्यूशन तो अलग ही ये. हमारा 1 का भी देखो, मैंने जो ये किया है, सब अभी ज़रा ये नहीं होता है ना. हाँ, पढ़ दे दो आप. दिस आवर अर्थ, दिस आवर इंडिया, वाइफ्स एंड वाइफ्स, हेल्दी एंड हैप्पी, इंडस्ट्रियल वर्कर, हेल्दी एंड हैप्पी ऑल्सो, बिल्डिंग ए नेस्ट. बिल्डिंग ए नेस्ट वाज द जनरल. औरत जो जनरली रहते हैं ना, हाउस वाइफ, वाइफ्स एंड बिल्डिंग नेस्ट, ये दोनों जनरल हाउस वाइफ के लिए ऑडियंस टारगेट करके वो उसने किया है. हेल्दी एंड हैप्पी वो रूरल के लिए है. तो ये ऐसे जब उनको आप जो फिल्म का जो क्लिपिंग्स दिखाएंगे ना, तो उसको ये मैं जो बोलता हूँ, इट विल रिफ्लेक्ट देयर. एक्चुअली यू विल कैन सी दैट चेंज. हर एक फिल्म का जो थोड़ा थोड़ा जो है, रूरल के लिए तो अलग उसका पैटर्न्स है, वाइव्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए जो अलग डिज़ाइन ये है. दिस आवर इंडिया का एक है, उसका एक अलग पैटर्न, ग्राफिक टाइप का ये है. एनिमेशन का भी डिज़ाइन पैटर्न अलग है. दूसरा उसका एक एनिमेशन का इसमें एक है, हमारा फिल्म डिवीज़न में पहला जब चालू फिल्म डिवीज़न में चालू हो गया था, जब विक्स वॉज देयर, अमेरिका से जब फिल्म डिवीज़न चालू हो गया 1956 में, तो विक्स आए थे, वॉल्ट डिज्नी का एनिमेटर थे. तो उनका जो स्टाइल था, वो एनिमेशन का स्टाइल, वो डिज्नी टाइप का थोड़ा सा काम करने का तरीका था. लेकिन ही हैज़ चेंज एंटायरली ये डिज़ाइनिंग स्टाइल. वो डिज्नी का स्टाइल उसने फॉलो नहीं किया है, अलग ही अपना ही किया है. और दूसरा पति साहब का और एक मेनली ये है कि ही हैज़ ट्राइड हिज फिल्म्स कटआउट एनिमेशन, सेल एनिमेशन, फिक्सिलेशन, ऑब्जेक्ट एनिमेशन. ये जो अलग अलग मीडिया लेके जो फिल्म एनिमेशन का बनाया ना, पति वॉज एक्चुअली फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एक ही स्टेरियोटाइप फिल्म नहीं बनाना चाहिए, एक ही स्टाइल नहीं होना चाहिए, अलग अलग मीडिया से ऑब्जेक्ट लेके फिल्म बनाना है. तो ये सब थॉट है वो लोगों ने दिया. और उस टाइम आप देखेंगे तो दैट पीरियड, पर्टिकुलर पति पीरियड और गोखले, वो पति ये था. बाद में जाने के बाद भी इम्प्रेशन तो वही रह गए ना. तो हम वी आर देयर एज ए आर्टिस्ट, एनिमेटर्स. तो वो इम्प्रेशन कर से हमने कटआउट एनिमेशन, सेल एनिमेशन का तो जो रूटीन था वो छोड़ के ऑब्जेक्ट एनिमेशन, फिक्सिलेशन, ये नए जो टेक्निक है, एनिमेशन टेक्निक, ये हमने वो फिल्म में ये किया, इंट्रोड्यूस किया, अपार्ट फ्रॉम रूटीन सेल एनिमेशन. तो ये जो सब इम्प्रेशन था, वो जो तो ये था हमारा काम करने का तरीका, बिकॉज ऑफ मिस्टर पति. समबडी इज एक्चुअली देयर हु हैज़ गिवन द गाइडेंस, एंड मिस्टर पति हैज़ गिवन दिस टाइप ऑफ गाइडेंस फॉर अस to make different type of
यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स. खाली सेल एनिमेशन के ऊपर डिस्ने का जो था पहला पैटर्न वो छोड़ के ये सब अलग अलग टेक्निक, एनिमेशन में टेक्निक, ये पति साहब का ही देना है, ऐसा तो ये नहीं है. तो मैं कुछ फिल्म का नाम पढ़ देता हूँ एक बार. हाँ, आप खाली सुन लीजिए, बाद में हम रेफर करेंगे. हाँ. बिल्डिंग ए नेस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, मनसूबे मछलीदार, द चाइनीज थ्रेड, आओ मिलकर गाएं, हमारा राष्ट्रगान, एक्सप्लोरर ऑफ अपर एयर, ए फीबल रिटोल्ड, पर्सपेक्टिव, क्लैक्सप्लोशन, एक्सप्लोरर, मोमेंट विद मास्ट्रेव, रविशंकर, ट्रिप, आबिद, इन दिस आवर इंडिया, देन रवि सितार पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 2 सुन के मैं दिमाग खराब हो गया. वो साउंड आ रहा, पिक्चर गायब, सिर्फ साउंड, तो साउंड आता है. हाँ, तो वही साउंड ट्रैक आता है, साउंड ट्रैक का इमेज आता है, इमेज आता है, और नो विजुअल्स. तो वही उसका जो मैंने वही कहा ना कि साउंड डिज़ाइन का उसका जो प्रेजेंटेशन का वो हमेशा कभी ये विजुअल खाली सोचते नहीं थे कि ऑलवेज देखा था सितार चल रहा, हाँ, सितार बज रहा, हाँ, लेकिन वो सितार का ऐसा साउंड है खाली विजुअल में वो जो नेगेटिव साउंड का नेगेटिव ही आता है. और वो बराबर एंड दैट ऑल्सो एक वन टाइप ऑफ ये है एनिमेशन का ही पैटर्न है. वो जो म्यूजिक के ऊपर ऐसा म्यूजिक के ऊपर वो सब आपको लगेगा, वो भी उसमें भी आपको रिदम आता ही है क्योंकि वो तो जो साउंड का रिकॉर्डिंग जो होता है, ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग जो होता है तो ऑटोमेटिकली होता है. वो भी कैसा होता है, म्यूजिक के साथ ही होता है वो, तो वो भी इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ विजुअल. इट डजंट रिमेन देयर एज ए साउंड ट्रैक. आपको दिखता है फिल्म के ऊपर सामने विजुअल में, बट इट इज़ नॉट साउंड ट्रैक, इट इज़ ए पार्ट ऑफ विजुअल, इट इज़ ए विजुअल एंड ओनली पति कैन थिंक सच टाइप ऑफ थिंग्स. यू गॉट माई पॉइंट. तो ये हर एक, इसलिए मैंने बोला ना कि उसका म्यूजिक का जो सेंस था साउंड का स्पेशली, आई एम नॉट यूजिंग ओनली पर्टिकुलर वर्ड म्यूजिक, आई एम यूजिंग वर्ड साउंड विद विजुअल्स. तो वो एंटायरली डिज़ाइन जो साउंड का करते थे तो मास्टरपीस थे. वो अलग ही थे, मास्टरपीस तो था ही, लेकिन वो अलग ही था. कोई सोचने के लिए बहुत मुश्किल रहता है, वो कोई सोच के वो इतना करेगा. एंड ही हैड डिवोटेड हिज कम्प्लीटली लाइफ फॉर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स. डॉक्यूमेंट्री के लिए अपना कंप्लीट लाइफ ये करने के लिए, देने के लिए आदमी बहुत कम है. फीचर फिल्म के लिए दे सकते हैं, हमारा हमेशा हम फीचर फिल्म के लिए हम इतना सब काम करेंगे, ये करेंगे, पहले से लास्ट तक मैं फिल्म भी बनाऊंगा. लेकिन खाली डॉक्यूमेंट्री के लिए ही इज़ थिंकिंग ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट्री एंड दैट टू इन डिफरेंट वेज, नॉट कन्वेंशनल वेज. तो ये पति साहब कर सकते थे. 15 साल. हाँ, और बहुत कम इसमें उनको पीरियड मिला, लेकिन 15 साल में क्या कमाल किया है जो अभी 50 साल में कोई नहीं कर सकता था, वो 15 साल में करके दिखाया है वाह पति साहब ने. तो पति साहब तो हर एक चीज़ में वो अलग ही थे. तो कौन सा पीरियड था 15 साल? वो हमारा एनिमेशन डिपार्टमेंट था. 1960 नहीं 50 आई थिंक 59-60 टू उसका ये डेट 95 हो में 75 में हो गया. हाँ 59 टू 75 ये जो पीरियड था उसका, ये पीरियड में इतना कम पीरियड में इतना बड़ा काम करने वाला एक ही आदमी हो सकता है कि जो पागल, सच्चाई कहेंगे तो वो पागल ही, डॉक्यूमेंट्री के लिए वो पागल ही थे, एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए पागल थे. हर एक फिल्म का जो डिज़ाइन करने का उनका तरीका ही अलग ही सोचने वाले थे. ही ऑलवेज थिंक अबाउट द विजुअल एंड साउंड एंड हाउ टू रीच दैट थॉट टू द ऑडियंस, द टारगेट ऑडियंस. तो ये दिमाग सोच के ही वो काम करते थे. तो उसका जो ये था, उसके बाद बहुत लोगों ने अपना एनिमेशन में भी एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया, लेकिन इतना नहीं हो गया. लेकिन डॉक्यूमेंट्री में भी एक्सपेरिमेंट करने वाली बात में उसको
कोई आदमी एक्सपायर हो गए, उनके पति का सब देख के भी कोई लोगों ने चालू किया वो मूवमेंट, लेकिन इतना ये नहीं हो गया। मिस्टर ये वॉज चंद्रा वॉज देयर, विजय चंद्रा, ही हैज ऑल्सो डन सम एक्सपेरिमेंटल बिकॉज सेम पैटर्न। थोड़ा सा एक दो तीन किया है, ऐसा सभी नहीं, एक दो चाइल्ड चेस बोर्ड ऐसा का कोई फिल्म था उसका, चाइल्ड ऑन चेस बोर्ड ऐसा, बट दैट इंस्पिरेशन वाज मिस्टर पति। चंद्रा साहब ने भी जो इंस्पिरेशन लिया है वो बिकॉज ऑफ मिस्टर पति का। इसलिए मैंने बोला ना कि उस टाइम भी दो ग्रुप थे, एक कन्वेंशनल टाइप फिल्म बनाने वाले और ये थोड़ा सा हट कर भी हम भी कुछ कर सकते हैं वो देखने वाले। एंड ये जो कन्वेंशनल हाँ, इसमें अपना क्या आपने कहा मुझे, कन्वेंशनल ग्रुप भी थे ना? हाँ कन्वेंशनल ग्रुप में था। कन्वेंशनल ग्रुप में तो बहुत से लोग थे, अपना मिस्टर वैद्य थे, बाद में पेंढारकर थे, और आणखीन कौन होते उस टाइम, वर्मा। ये अभी तो मुझे इतना हाँ चौधरी नहीं इतना ये था, लेकिन ये तो कन्वेंशनल, वैद्य, प्रेम वैद्य, ये थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप की ये करते थे, फिल्म करते थे, अच्छा करते क्या थे। बोलते थे? वो बोलते थे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, दैट वाज हिज मेन। ये समझ में नहीं आता क्या करने का है, फिल्म शुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल, और ये गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए हम बनाते हैं। अब एक फिल्म देखें, 876432 हाँ देखें, फिल्म बता दीजिएगा। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है। फैमिली प्लानिंग के ऊपर था, सिंपल सब्जेक्ट। देखा होगा लेकिन मुझे अभी 87 मुझे अभी मुझे 765432 नहीं, मुझे अभी माइम एक्शन था। हाँ हाँ, वो अभी मुझे इतना नेट में है। अभी टाइम लैप्स का जो ये किया है वो पति ने ही किया है, टाइम लैप्स का जो ट्रिप किया है वो पति साहब ने, दैट इज एक्सपेरिमेंटल है, टोटली एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो अलग अलग ढंग का उनका सोचने का तरीका ही अलग था। फैमिली प्लानिंग के ऊपर उन्होंने कई फिल्म बनाया। हाँ बहुत बना है, ऐसा नहीं कोई हाई फाई फिलोसफी, नहीं नहीं किधर, हाँ सब्जेक्ट मिले तो ही कुछ होगा। नहीं नहीं, एक्सप्लोशन। ऐसा तो उनका फैमिली प्लानिंग का एक कैंपेन था उस टाइम भी, उसने देयर वाज डेफिनेटली ये उनके मन में था, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, जो फैमिली प्लानिंग का जो फिल्म्स है हम किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हु इज़ द टारगेट ऑडियंस। तो हिसाब से ही हैज़ डन दैट फिल्म्स, बट दैट टू वेरी सिंपल, लेकिन समझ में इमीडिएटली ऐसा कुछ उसमें इतना मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने वाले डायरेक्टर वो एकदम इतना सिंपल और सीधा बात बोलते हैं। चेंज ओवर देखो कितना है कि बिकॉज ही इज़ नोइंग दैट दीज आर माई टारगेट ऑडियंस, अरे ये मैं जो बना रहा हूँ फैमिली प्लानिंग के लिए ये टारगेट ऑडियंस है, और उसको ये समझने के लिए अपना इंडियन टारगेट जो ऑडियंस है इसके लिए ऐसे ही फिल्म्स लोगों को समझना चाहिए। और पति साहब का टाइम में जो फैमिली वेलफेयर का जो मूवमेंट चालू किया था उसका रियल लाइफ में भी, आई मीन इंडिया में भी बहुत ये हो गया है, उसका फ़ायदा हो गया है उस टाइम से। रियली इट रीचेस टू द ऑल इंडियन ऑडियंस, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, ये थॉट पतीस का कंट्रीब्यूशन फिल्म, स्पेशली फिल्म डिवीज़न का जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली वेलफेयर का जो फिल्म बनाया है उस टाइम का, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो अपना ये है ही है। और इसलिए तो अभी कम से कम लोगों को तो ये मालूम हो गया कि फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन वो मोमेंट उसने 4-5-7 साल बरस तो इतना कंटिन्यूस उसने हैम्पर किया उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो सम ही खुद कुछ फिल्म्स का डायरेक्टर किया है, कुछ प्रोड्यूसर बना है फिल्म्स का फैमिली वेलफेयर का, तो ये तो उनका ये था ही। एक फिल्म है फेबल रिटोल्ड,
ग्रास ओपर एंड एंट, हाँ उसका स्टोरी था। हाँ, वो तो अपना और वो जो गुफा में जाते हैं वो सेविंग के ऊपर था, वो स्मॉल सेविंग के ऊपर ऐसा कुछ था। बिल्डिंग एंड नेस्ट। बिल्डिंग ही नहीं थे आप नहीं, हाँ ये भी स्मॉल स्विंग है। आप जो ये जो बोलते हैं ना कि चिड़िया ऐसा एंड्स एंड ग्रास ओपर, हाँ ग्रास ऊपर, फेबल रिटोल्ड। हाँ फीबल, ये सब तो नाम फिर से बोल दीजिए। हाँ ए फेबल रिटोल्ड। ये फीबल रिटोल्ड, ये भी अपना जनरल ऑडियंस के लिए था, स्पेशली जो गांव में रहने वाले लोग थे उसके लिए ये तो था। और वो डिज़ाइन और उसका जो स्टोरी टेलिंग का भी जो प्रेजेंटेशन था स्टोरी टेलिंग का, वो भी गांव के लिए लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझ में आना चाहिए ना। हम स्पेशली क्या होता है एनिमेशन का हमारे इंडिया में, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जब पति आए थे कि पति से पहले भी एनिमेशन फिल्म्स का जो देखने का तरीका जो है लोगों को इतना ये नहीं समझ में आता था, यानी बहुत फास्ट कुछ ऐसा इधर उधर। और वो एजुकेशन के लिए फिल्म्स है, एनिमेशन फिल्म्स, कार्टून फिल्म्स, इसका मतलब क्या है इधर उधर कुछ वो टेढ़ा फेढ़ा जरा हंसने के लिए करने का, मज़ा मौज मज़ा के लिए। लेकिन इसका मीडिया, ये मीडिया का सच्चे मायने में जो यूज़ किया है पति साहब ने किया है, सिंपल स्टोरी टेलिंग का जो है एनिमेशन का थ्रू, लोगों को सब लोगों को इंटरेस्ट भी लगना चाहिए और फिल्म भी समझना चाहिए और सब्जेक्ट भी समझना चाहिए। तो आई एम टॉकिंग ब्रॉडली, आई मीन ऐसा हर एक फिल्म। फेबल रिटोल्ड में यू आर इन्वॉल्व? नहीं, आई वॉज नॉट देयर। बिल्डिंग एंड नेस्ट, हेल्दी एंड हैप्पी। हेल्दी एंड हैप्पी आई वॉज देयर। हेल्दी एंड हैप्पी का आपका जो फिल्म आप देखेंगे ना, हेल्दी एंड हैप्पी, तो उसका भी कैरेक्टर रूरल का है, रामोनी बनाया है वो भी कैरेक्टर इतना अच्छा स्वीट और अच्छा है कि इमीडिएटली उनको लगता है कि अरे हम रूरल का आइडेंटिफाई हो सकता है वो, और उसका मूवमेंट भी और उसका बैकग्राउंड डिज़ाइन भी एकदम रूरल का जैसे ही आप वो लगेगा। तो ये तो ही कैन ओनली थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था हेल्दी एंड हैप्पी में? मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा है और सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन का जो सिंप्लिसिटी है और अपना जो स्टोरी टेलिंग का जो मेथड रहता है उसका, वो एनिमेशन का जो मीडिया है वो सिंपल एनिमेशन करके कैसा लोगों को पास मैक्सिमम मैसेज कैसा जाएगा वो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। आओ मिलकर गाएं। आओ मिलके, दैट वाज द अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो छोटे बच्चे का ये था और वो सब जो था उसका भी मोमेंट्स आप देखेंगे तो म्यूजिक के ऊपर ही था। उसने पहला म्यूजिक रिकॉर्ड किया, पति साहब ने। म्यूजिक रिकॉर्ड होने के बाद वो बीट्स तैयार करके वो सिंपल छोटे छोटे बच्चे का जो डिज़ाइन है वो भी आई थिंक मिस्टर राम मोहन हैज़ प्रिपेयर्ड। राम मोहन हैज़ गिवन लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एज फार एज डिज़ाइन इज कंसर्न। वो पति साहब ने ही करके लिया, उसने वो कैसा चाहिए क्या चाहिए वो समाज के, एंड ही इज़ द नाइस पर्सन। आई मीन वो स्फेयर कवर मालूम है? आओ मिलकर गाएं पहला फिल्म है, 3 पार्ट है। हाँ। देखिए स्फेयर है, हाँ स्क्रीन में ऊपर नीचे होता है स्फेयर, हाँ, गोल गोल थोड़ा। वो तो कटआउट एनिमेशन का एक एलाबोरेट की वो फिल्म का नाम लेके। फिल्म का नाम मुझे अभी याद, आओ मिलकर गाएं। आओ मिलकर गाए में जो अलग अलग ये फिर से आओ मिलकर गाए, ये जो फिल्म है वो मुझे लगता है कि वो कटआउट एनिमेशन का भी एक उसमें थोड़ा सा यूज़ किया है और सिंपल मोमेंट्स देकर भी किया है। ऐसा 2-3 कुछ जो पार्ट्स है उसमें, तो कुछ कटआउट एनिमेशन है, कुछ सिंपल सेल एनिमेशन है, ऐसा मिक्स करके, और वो म्यूजिक के ऊपर पहला म्यूजिक रिकॉर्ड करके बाद में वो एनिमेशन और शूटिंग वो हिसाब से किया है। ट्रिप कैसे बना? ट्रिप और टाइम लैप्स का जो इनका ये था, ये एक्सपेरिमेंटल था। वो तो क्या उनका एक दिमाग में ये जो था कि मॉर्निंग टू एंड इवनिंग, सुबह से शाम तक जो निसर्ग में जो चेंजेस हो जाता है वो ही हैज़ कैप्चर्ड दैट कंप्लीट 12 आवर्स
विद इन लिमिटेड टाइम कंप्लीट। वो जो इतना इसमें वो कंप्लीट लाना फ्रीज करके इतना 12 घंटे का ये 5 मिनट में वो सब 5-10 मिनट में सब दिखाना, इट इज़ नॉट ए इजी जॉब। तो वो उसने किया है। और उसने जो ट्रिप में जो लोकेशन भी किया है, देखो एक वन है नेचुरल सी का अपना ये है गेटवे ऑफ इंडिया का है, दूसरा जनरल मार्केट का एक है, नहीं निसर्ग का एक है। तो ऐसे अलग अलग इसमें नेचर का जो चेंज ओवर होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू एंड, तो उसमें कैप्चर एकदम इसमें कैप्चर किया है। फ्रीज जैसा बोलते हैं ना हम, एक 12 घंटे का एक 5 मिनट में हम सब उसमें लाना और वो इम्प्रेशन देना सुबह से शाम तक का ये है। तो इट इज़ नॉट ए सिंपल जॉब, इट इज़ ए नॉट जॉब। तो वही कर सकता है, वो वही सोच सकता है। पच्चे साहब ने वो सब देखो कितना अलग अलग ढंग से वो पच्चे साहब ने सोचा है। वो आपने साथ में कोई स्क्रीनिंग देखें, साथ में बैठ के कोई फिल्म देखें पब्लिक स्क्रीनिंग में? पति साहब कोई पब्लिक स्क्रीनिंग हो रहा, आप वहाँ पे अटेंड किए हैं तो कैसा है? अगर किए तो कैसा रहा? देयर मिक्स रिएक्शंस। नहीं, कौन सा फिल्म, वो डिटेल्स। स्पेशली आबिद और एक्सप्लोरर, ये दोनों में गालियाँ देने वाली भी ऑडियंस थे और क्लैप्स बजाने वाली भी ऑडियंस थी। आपने साथ में बैठ के हॉल में देखे? हाँ, नहीं कहाँ देखे, क्या देखे? नहीं, ये इधर मैं अपना थिएटर नंबर, हमारा जो फिल्म डिवीज़न में ही थिएटर थे, हमारा शो होता था हर एक वीक में। नया डायरेक्टर ने नया कुछ फिल्म बनाया है, एक्सपेंड किया है, वो तो अलग हर एक वो रिपीट होते थे शो, ऑडियंस को बुलाते थे और वो ये करते थे। तो जनरल ऑडियंस का मिक्स रिएक्शन था। कोई लोगों को तो एकदम ऐसा लगता था अरे क्या बना है, इट वॉज ए शॉक ट्रीटमेंट। पति का जो फिल्म था वो इट इज़ ए शॉर्ट ट्रीटमेंट था, शॉक ट्रीटमेंट, आई एम सॉरी, शॉक ट्रीटमेंट था। वो लोगों की भी लगता था अरे ये क्या बना है। हाँ, ये जो रिएक्शन है। और कोई वो बोलता है क्या समझ में नहीं आता है, ये क्या फिल्म बना है, क्या समझ में आता है, क्या क्या है। अभी है जो, हाँ। अभी दूसरा एक देखो, एक्सप्लोरर में उनका एक इंडियन फिलोसॉफी और मॉडर्न फिलोसॉफी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया है उसने। रामायण, पारायण, ऐसे कुछ वर्ड्स, और वो विजुअल्स भी वो ओल्ड के ऐसा जो ब्राह्मण ऐसा जो लोग है वो पूजा कर रहे हैं वो, और एकदम अपना नया भारत का जो नया प्रोग्रेसिव भारत, उसका विजुअल्स, उसका जो कटिंग है दोनों का, यानी अपना एंशंट अपना जो सिविलाइजेशन प्लस फिलोसॉफी एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन और द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, मॉडर्न अपना जो नया किया है, प्रगति की जो किया है साइंस में, वो उसका दोनों का विजुअल्स का जो कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। कटिंग भाई इतना एब्रॉड कटिंग है, आपको रूटीन एडिटर नोबडी विल डेयर टू टच दैट टाइप ऑफ फिल्म्स टू एडिट। पति खुद बैठते थे एडिटिंग के लिए, खाली एडिटर होते थे साउंड के लिए ज्वाइन करने के लिए। तो कोई तो आदमी पति तो ऐसा आकर जो बोलते इधर इधर मार्क करो, इधर मार्क करो, इधर करो, इधर ज्वाइन करो। ही यूज्ड टू सिट देयर। मेरा माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने भी 32 ईयर्स आई हैव स्पेंड इन द फिल्म डिवीजन। वेरी रेयर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एडिटर के साथ और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के कुछ डिस्कस किया है मैंने कभी, बहुत रेयर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी ऐसे है, लेकिन वेरी रेयर डायरेक्टर थे फिल्म डिवीजन में उस टाइम। अभी मुझे मालूम नहीं, आई डोंट वांट टू give any opinion about present situation, but at that time also there are very good directors. वो खुद बैठते थे, एडिटर के साथ बैठते थे, कैमरामैन के साथ बैठते थे, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को लेते थे। लेकिन बाकी का तो बस अभी शूटिंग करके आ गया ना, कैमरामैन दे दो, ये स्क्रिप्ट दिया है, उधर ऐसा कुछ एडिटर को बोलो आपको जैसा ऐसा ही आना चाहिए लगाओ। बाद में वो रफ कर, लेकिन ये बात वो डायरेक्टर जाकर देखता है, बोलता है ठीक है, नहीं तो कुछ थोड़ा सा सजेशन देना है तो देते हैं।
म्यूजिक के बारे में तो बहुत यही है लोग, वेरी फ्यू डायरेक्टर हु अंडरस्टूड द म्यूजिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूजिक फॉर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो ये तो उस टाइम भी था, अभी तो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट्स। 2 दफ़ा मैंने उनके साथ खाना भी खाया, घर में बुलाया था खाना खाने, क्योंकि खाली खाना ये मेन ये था ना, ये नहीं था, वो फिल्म का डिस्कशन करने के लिए ऑफिस में टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज ये वो इतना बिजी थे हमेशा ऑफिस में, कोई ना कोई आते थे, तो अच्छे तरह से फिल्म का प्लानिंग करने के लिए जो टाइम चाहिए, काम एंड क्वाइट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो ऑफिस में नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। तो इसलिए पति साहब ने मुझे कहा कि आप इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन यू कम टू माय घर। तो मैंने बोला कि मैं आपके घर में आ जाता हूँ, कि आप बोलिए कभी चाहिए आपको टाइम, आप बोल दीजिए, मैं आई विल कम देयर। तो 2 दफ़ा मैं उनके साथ खाना खाने के लिए का भी मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी लकी। बाद में 2-3 दफ़ा कॉफ़ी पीने के लिए भी ऐसा बीच बीच में मैं जाता था। वो क्या था, मैं गोरेगांव में रहते थे उस टाइम, वो रहते थे इधर खार में, खार और सांताक्रूज के बीच में। तो ही यूज टू ड्रॉप मी अप टू द खार, उनका गाड़ी वो लेके आते थे खार तक, उधर मैं उतर देता हूँ, उधर से मैं गोरेगांव तक बस से आता था। तो बीच बीच में कभी बोलते चलो अभी चाय पिए और बाद में बस से जाओ, कॉफ़ी पियो और बस में जाओ। वो कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती थी, कि हिमसेल्फ वो खुद कोल्ड कॉफ़ी खुद बना के मुझे, मैंने आई एंजॉयड दैट कॉफ़ी। वो खुद बनाती थी, मिसेस को भी नहीं बोलती थी कि आप ज़रा कॉफ़ी बनाओ, तो खुद जाकर वो सब कोल्ड कॉफ़ी करके, वो आई हैव एंजॉयड दैट ऑल्सो। दूसरा एक बात मैं अभी आपको हॉस्पिटल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में गया था, तो नया नया उनका ये हो गया, एडमिट किया था, उसको डिटेक्ट हो गया था कैंसर का ये है। तो एक नया आदमी, आई मीन उनके फ्रेंड ही थे, वो नया आदमी आकर उसने कहा, मिसेस को मिला, बोला कि उनको मालूम था कैंसर हो गया है, वो आदमी का, पति का फ्रेंड थे वो। तो मिसेस को बोला कि वो फ्रेंड ने कि आप उनको मत बोलो कैंसर हो गया है, नया नया थे, नया तो उसका मिसेस ने क्या बोला मालूम है, ही हैज़ रेड ऑल द बुक्स ऑन द कैंसर, सो ही नो मोर देन मी और मोर देन इवन डॉक्टर, उसको क्या हो गया ही इज ऑलरेडी नो। तो अभी मैं उनको क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि उनका वो फ्रेंड का जो ये था कि ऐसा बोलना पेशेंट का ये हो जाता है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो, इसलिए ऑन दैट गुड इंटेंशन ही हैज़ मिसेस को बोला। लेकिन मिसेस ने क्या बोला, ही हैज़ रेड सो मेनी बुक्स ऑन कैंसर, ही नो एवरीथिंग, बट इवन ही हैज़ गॉट करेज, नहीं मैं स्ट्रगल करूँगा। वो तो एक अलग ये था उनका। तो वो हॉस्पिटल में का एक किस्सा में मुझे याद आ गया। दूसरा एक मैं ये कर देता हूँ कि उस टाइम बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं था। जो मैंने जो फिल्म बनाई थी, ही वॉज द प्रोड्यूसर, वन फिल्म, it was a little bit semi experimental, you can call it semi experimental, because that designing was totally experimental design. एनिमेशन का स्टाइल भी अलग था, इट इज़ नॉट ए टोटली कन्वेंशनल, छोड़ के सब मैंने किया था। यानी नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर 4-5 सब्जेक्ट्स हमारे फिल्म डिवीज़न के लोगों ने सबमिट किया था अप्रूवल के लिए। तो उसके 2-3-4-5 लोगों का 2-3 आइडियाज़ अप्रूव हो गया, मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ गया। उसमें मेरा एक था, एक ये वन का। तो उसने मेरा आइडिया सब देखा, मैंने स्टोरी बोर्ड करके सबमिट किया था, एंड इट वाज एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक स्टाइल। तो पति ने गोखले को साहब को, दैट टाइम गोखले वाज ऑफिसर इन चार्ज अपना एनिमेशन डिपार्टमेंट का, ही वॉज प्रोड्यूसर नाउ।
तो पति ने साहब ने बोला कि ये जो सूर्य बोर्ड सेनगे ने बनाया है उसका प्रोड्यूसर मैं बनूंगा, बाकी सो आप प्रोड्यूसर बन जाइए। डायरेक्टर सेनगे बनेंगे और प्रोड्यूसर मैं बनूंगा। ओनली 4 फिल्म्स में एक मेरा फिल्म का खाली ही वांटेड दैट ही शुड बी ए प्रोड्यूसर। तो वो उसने प्रोड्यूस किया। ये प्रोड्यूसर करके नाम उनका है ही वो फिल्म के ऊपर। वो एंटायरली डिफरेंट डिज़ाइन, और ही इज़ ओनली अप्रिशिएटेड माय डिज़ाइन, क्योंकि ही नोज दैट अच्छा क्या है, बुरा, नया मॉडर्न क्या है, लोगों को समझ में आने के लिए बहुत कठिन था वो। तो और दूसरा इसके बारे में एक मैं बोलता हूँ कि वो फिल्म बनने के बाद मैंने एक्सपोज किया, सम कंप्लीट शूटिंग किया, तो बीच में उसका शूटिंग के टाइम क्या हो गया था, ऑक्सबरी हमारा ऑक्सबरी कैमरा हमारा था, एनिमेशन कैमरा, उसके अंडर मैंने शूट किया। मैंने खुद उधर ये करके, कैमरामैन भी थे, और मैंने सब प्लानिंग करके जैसा चाहिए वैसा शूटिंग का मैंने ये प्लान कर दिया। लकीली क्या हो गया, उस टाइम का जो ऑटोमेटिक फेड आउट फेड इन जो का ये और मिक्स का जो ऑक्सबरी कैमरा में एक गैजेट है, वो हमने ऐसा फिट किया कि 36 फ्रेम के अंदर हमको एक क्लोज हो गया होगा, नहीं तो 48 जो फिक्स करेंगे वो फ्रेम में आउट हो जाएगा, इन हो जाएगा। वो ऐसा ऑटोमेटिक वो ऑक्सबरी कैमरा का एक गैजेट है उधर। तो मैंने फिक्स किया था 3-3 फीट का मिक्स करने का। पहला शॉट जाएगा 3 फीट का, दूसरा आएगा इन हो जाएगा मिक्सिंग का। तो वो सब कंप्लीट शूटिंग का मेरा हो गया। तो बाद में जब रशीद आ गया तो आई बिकम शॉक एक्चुअली, बिकॉज इट हैज़ नॉट वर्कड आउट प्रॉपरली। जो फेड आउट फेड इन का जो है मैकेनिकल कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो वो एकदम बीच में एकदम ऐसा ये होता था, जो थे वो कुछ फेल हो गए, मैकेनिकल डिफेक्ट था वो, हमारा कुछ ये नहीं था। तो सब फिल्म मैंने वही पैटर्न से शूट किया था, फ्रॉम 1 to लास्ट तक मेजर जो सीन थे। तो मैंने पति ने बोला कि सेनगे कैसा हो गया आपका, शूटिंग हो गया, आ गया क्या रशीद? मैंने बोला कि आ गया, बट आई एम वेरी सॉरी सर, आई हैव टू रीशूट इट अगेन। मतलब क्यों क्या हो गया? तो मैंने ये मेरा जो प्रॉब्लम था ये फिल्म के बारे में, तो मैंने बोला कि आई हैव प्लान दिस कंप्लीट नियरली 150 फीट का जो एक ऐसा एक के दूसरे मिक्सिंग का एक मैंने डिज़ाइन करके ये शूटिंग किया था। लेकिन हर एक मिक्स में वो एकदम एब्रॉप्टली मिक्स होता था, एब्रॉप्टली ये होता था, स्मूथनेस जो आना चाहिए मिक्सिंग में वो नहीं आ गया है। सब मैकेनिकल गड़बड़ था। मुझे फिर ज़रा कैमरा दुरुस्त करके लेके मैं फिर शूटिंग करूँगा। तो बोला कि डोंट शूट इट, लेट मी सी। तो मैं एडिटर हमारे साथ पास मैंने उनको दिखाया, एडिटिंग रूम में लाकर मेरा रशीद दिखाया। तो बोला कि अरे फर्स्ट क्लास, डोंट वरी, ये इतने अब्रॉड में ऐसा जो मिक्स लगता है ना, वो मैं बराबर म्यूजिक का बीट के हिसाब का मैं एडिट कर देता हूँ, डोंट वरी। आपका जो प्लान था स्मूथ मिक्सिंग चाहिए, वो डजंट मैटर। थोड़ा सा अब्रॉड एकदम ऐसा लगता है ना, इट बिकम्स ए डिफरेंट ये, और उसमें कुछ स्टोरी का कुछ ये नहीं आता है, बाधा नहीं आता है। वॉट एवर वी वॉन्टेड टू टेल टू द ये अपना ऑडियंस के लिए हम जो कहना चाहते हैं वो उसमें आ जाता है, उसमें कुछ ये नहीं है। इट बिकम्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न मिक्सिंग का। सो डोंट वरी, डोंट रीशूट इट, इट इज़ ऑल राइट फॉर मी। आई विल सी दैट ये इसमें कैसा ये होता है। तो इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैव लर्न दैट, यू नो, क्या कैसा भी ये होगा तो भी उससे कैसा मार्ग निकाल ये करके आगे जाने का, नर्वस नहीं होने का। यू हैव टू दैट करेज, नहीं इसमें से हम करके दिखाएंगे। तो ये दैट वाज ग्रेटनेस मिस्टर पति। यही फिल्म के बारे में मुझे और एक शौक मिला कि उस टाइम बॉम्बे इंटरनेशनल फेस्टिवल थे। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए फिल्म डिवीज़न का एक
कौन सा एक फिल्म सिलेक्ट करते थे, हर एक बरस करते हैं ओपनिंग सेरेमनी का फिल्म्स। तो पति साहब ने मेरी फिल्म सिलेक्ट की, छोटी सी थी लेकिन ओपनिंग का सेरेमनी का फिल्म मुझे मालूम नहीं था। ही हिमसेल्फ एज मैंने कमेटी को दिखाया, यही फिल्म लोगों को लगा कि करेंगे। तो बोला कि माय लक मंडल, क्योंकि बॉम्बे इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए मेरी फिल्म ओपनिंग के लिए दिखा रहे हैं। तो दूसरा शौक मुझे ये मिला, वो जो फिल्म थी वो मैं ऑक्सबरी कैमरा में, रूटीन कैमरा जो था एनिमेशन का, उसके ऊपर शूट किया था। वो नॉर्मल लेंस अपना एनिमेशन के लिए जो फ्लैट सरफेस के ऊपर हम जो सेल एनिमेशन करते हैं वही लेंस उधर यूज़ किया था। लेकिन जब मैंने थिएटर में वो देखा फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल का ओपनिंग में, इट वॉज ए फैंटेस्टिक, जस्ट लाइक ए सिनेमास्कोप, इट वॉज ए सिनेमास्कोप। तो मैंने बोला, मैंने पति साहब को, मुझे बाद में पति ने मुझे बोला है, देखो ये मैंने सिनेमास्कोप का लेंस लगाया है उधर, किधर, प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्टर का जो सामने जो ये जो है लेंस है, उसके ऊपर जो सिनेमास्कोप का जो लेंस है वो मैंने लिखा के मैंने एक ट्राई किया, एंड आई हैव शोन दैट फिल्म फॉर द इंटरनेशनल। इट वॉज एंटायरली डिफरेंट। वो इसमें भी देखो उसका एक्सपेरिमेंट देखो, प्रोजेक्शन में, हाँ प्रोजेक्शन में एक्सपेरिमेंट। और मैं खुद अच्छा, इतना मेरा डिज़ाइन का पैटर्न भी एब्स्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं कि रियलिस्टिक आदमी है वो उसका ऐसा डिस्टॉर्टेड होता है। तो मेरा जो पैटर्न जो था डिज़ाइन का वो एब्स्ट्रैक्ट होता तो भी और मज़ा आता था। तो इतना बड़ा स्क्रीन के ऊपर मेरा फिल्म मैंने देखे, मैं दैट वाज माई सेकंड शॉक टू मी। तो ये पति ही कर सकते हैं, सोच सकते हैं। रिमेंबर व्हिच थिएटर? हाँ, इट वाज एरोस। And how many audience were there? तो फुल ऑडियंस, ओपनिंग सेरेमनी तक था, ओपनिंग सेरेमनी का मेरा फिल्म था। एरोस ने, आई एम सॉरी, ये एनसीपी नहीं तो ये अपना, ये दो कौन सा था अपना जो है, तो मुझे अभी इतना याद नहीं है। बट मिफ तो नहीं हो सकता। नहीं, बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म था। इट वॉज दिल्ली जो होता, नहीं दिल्ली में नहीं है। हाँ। इट वॉज बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नाम भी ऐसा था उसका। नहीं ये जो मीफ या बीफ, ये स्टार्ट हुआ 1990 में ना, वो चंद्रा साहब ने स्टार्ट किया। हाँ नहीं, उसमें नहीं है। ये तो पति वॉज देयर एट इट मे बी बिफोर 1975, इट मे बी, ऑडिटोरियम, व्हिच थिएटर? तो मुझे इतना याद नहीं है। इट मे बी आइदर दिस ये मोस्टली एनसीपीए, तो इतना मुझे इतना याद नहीं है। कैसा लगा? अरे मुझे तो खुशी की बात ही थी ना, मेरे जैसा आदमी, ऑर्डिनरी आदमी को इतना बड़ा ये मिलता है। और दैट आई कैन सी माई ओन फिल्म्स इन सिनेमास्कोप, विच आई शॉट इट ऑन अंडर एनिमेशन कैमरा विथ सिंपल लेंस, नॉर्मल लेंस। तो ये तो पति का ही सब दिमाग है। दिस इज नॉट माई, ये मेरा कुछ उसमें नहीं है। इट इज नॉट एनीथिंग रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। Every, हाँ, even there he has done some experiment. He is always thinking about something new. कन्वेंशनल का तो करते ही थे, वो तो है, लेकिन उससे और ज़्यादा क्या करना है। He can only imagine that. एफडी में जितने भी स्टाफ थे, आप ज़्यादा करीबी थे। Luckily, I was very close. I don't know why he has. And he loves everybody. That I हाँ, came to ऐसा know. तो वो तो सर हर एक को, लेकिन मुझे तो कितना दफ़ा पेडर रोड से खार तक, जब इधर तक रहते थे तो मुझे पिकअप करके इधर तक छोड़ते थे, खार ये बस स्टॉप तक, और बाद में उधर से मैं इधर बस से आता था। आई डोंट नो, वो मेरे ऊपर उसका, इट इज़ गॉड्स गिफ्ट मुझे मिला है वो तो अलग ही चीज़ थी। बहुत लोग बहुत कम लोग हैं कि जो पति ने उनके एकदम नज़दीक जैसा उनको ये किया है। तो आई वॉज वन ऑफ देम, लाइक फैमिली मेंबर। एज ए फैमिली मेंबर हो। हाँ, कुछ आप एक्सप्लोरर के बारे में बता रहे थे। एक्सप्लोरर का तो Secularism कुछ। हाँ, वो उसका जो एक्चुअली कमेंट्री नहीं है उधर, इट इज़ वर्ड्स। वो इंचैंटिंग करते हैं ना, वो ब्राह्मीण और नहीं तो मोमेडन्स, ये वो दोनों वॉइस आई देखो उसमें।
रामायण पारायण और दूसरा इसका भी ये है मोहम्मदन का जो भी ये बोलते हैं वो भी दोनों वॉइस उसमें मिक्स किया है। तो ये ऐसा ये नहीं थे कि हम खाली हिंदुओं के लिए ये है और मुसलमान के लिए हम हेट करते हैं, ऐसा उनका तो सोचने का तरीका सब ह्यूमन इज इक्वल। जात पात ये कभी मानने वाले, आई डोंट थिंक दैट ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन, वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, वेरी ब्रॉड माइंडेड। तो वो उसको मुझे भी पति को समझने के लिए बहुत दिन लगा। इट इज़ नॉट वेरी इजी। जैसे जैसे वो गुजर जाने के बाद मैंने जब सोचा अरे ये आदमी ने ये किया, ये आदमी ने किया, मैं था उस टाइम, लेकिन मुझे उस टाइम इतना समझ में नहीं गया था, मैं अभी मुझे समझ में आ रहा हूँ उसका थॉट क्या था। वो हमेशा ऐसा कभी कभी मेरा उतना कैपेसिटी नहीं था ना उसका उस टाइम जब वो बोलते थे इमीडिएटली मुझे ये होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम चला गया, जैसे जैसे आई स्पेंड मोर टाइम विथ हिम, सो आई अंडरस्टूड हिज वे ऑफ वर्किंग, हिज थॉट्स। इट इज़ माई लक एक्चुअली, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। इनोवेटिव फिल्म फेस्टिवल क्या अवार्ड्स का एक आपने जो ये किया है इनिशिएटिव लेके, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने अप्रूवल करके लिया है, मैं आपको मानता हूँ। बिकॉज नहीं इट इज़ समबडी, आई मीन उसको जानकर, उनका कैपेसिटी जानकर आपने इतना ये किया है। इट इज़ नॉट जो कौन करने वाले हैं, यू हैव डन इट। ग्रेट मैन। नहीं बट ग्रेट मैन कितना लोग करते हैं, ग्रेट मैन तो बहुत है, कितना लोग उसके पीछे करते हैं, आपने किया। इट इज़ गुड थिंग, नहीं गुड थिंग। ही ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप जो एनिमेशन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन फिल्म्स का जो ये है ना, ही इज़ द प्रोग्रेसिव ग्रुप का एक हेड था एक्चुअली। ही इज़ द मेन फाउंडर ऑफ दैट ये शॉर्ट फिल्म्स का, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स का। इनोवेटिव जो फिल्म जो डॉक्यूमेंट्रीज का जो ये है, ही इज़ द फाउंडेशन। फ्रेंच में एक मूवमेंट आया था न्यू वेव। हाँ, न्यू वेव मूवमेंट का भी दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ इट। इट इज़ the same way actually, you can use this word or that word, but innovative और experimental और modern thought करने का जो तरीका है वो तो he is the founder, progressive group, documentary progressive group का he is the head, he is the main person who has started that movement in India, especially in the documentary films। तो ये तो बहुत उसको ये तो देना ही पड़ेगा। हिस्टोरिकल हिज नेम विल बी रिकॉर्डेड, आज नहीं कल नहीं, कभी कोई भी अच्छी तरह से उसके बारे में जो बुक लिखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल कुछ तैयार करके रखेंगे, तो ही विल बी नोन एज दिस ए पायोनियर ऑफ दिस मॉडर्न वे, न्यू वेव्स। मॉडर्न वेव्स का जो मॉडर्न नया मूवमेंट्स का जो ये है डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स का, ही इज़ द पायोनियर, ही इज़ द पायोनियर। और लोगों ने फिल्म बनाए, मणिकौल, कुमार साहनी। नहीं, उसका तो स्टाइल अलग था। उसका स्टाइल का दो चीज़ थे। उसका तो स्पेस, जो फिल्म का स्पेस रहता है, एडिटिंग का जो स्पेस देने का एक मोमेंट का स्पेस, स्टोरी टेलिंग का एक वे ऑफ अप्रोच, स्टोरी टेलिंग का फ्रेम करने का, कंप्लीट फिल्म का जो डिज़ाइन करने का, वो एक अलग था। एक स्लो मोमेंट करके कोई लोग फिल्म बनाते थे, बहुत स्लो। आपके पास कैमरा रखा है, बस एक सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट आपके ऊपर ही है, कुछ नो मोमेंट, नो ये, कुछ इधर से ऐसा फ्लाई आता है जाता है, कुछ पत्ता ऊपर से गिरता है, आदमी बैठा है, दो सेकंड, 3 मिनट, एक इतना भी लॉन्गा शॉट स्लो मूवमेंट्स का है, वो तो अलग है। दैट इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन कॉल इट ए एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ ए रूटीन टाइप ऑफ फिल्म्स, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। बट ही उनके पहले नहीं था, वो ऑन द सेम लेवल पर, सेम 1-2-4 बरस आगे पीछे हो सकता है, बट पति वॉज पहला। यानी इनका जो एडिटिंग पैटर्न था ना, वो तो फैंटेस्टिक था पति साहब का।
एडिटिंग पैटर्न है फैंटास्टिक। कभी ये देखो, जनरली क्या होता है, बीट के ऊपर कट होता है फिल्म का, जो डॉक्यूमेंट्री नहीं तो कौन फीचर फिल्म कौन सा भी एक बीट के ऊपर करेगा तो अच्छा जाता ही है। ये म्यूजिक इज़ गुड एंड दैट विजुअल का थोड़ा सा इधर फिल्म का जो अच्छा नहीं रहेगा तो बेरेबल रहता है वो विजुअल। इनका विजुअल कट टू ऐसा रहता है कि वन कैन नॉट इमेजिन, अरे ये तो जर्क है, तो ही वांटेड दैट टाइप ऑफ जर्क पर्पजली, शॉक देते थे वो। आई कैन कॉल इट एज ए शॉक ट्रीटमेंट। तो ये सोचने का भी तरीका अलग रहता है ना उनका, पति साहब का सोचने का तरीका ये सब कुछ ना कुछ और वो दुनिया को कुछ दे के गए हैं। देखो ये दिस इज़ ऑल्सो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स विथ न्यू वेव्स। ये तो रूटीन में थोड़ा सा इधर उधर करके वो करने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरा एकदम बंडल है, लेकिन इनका लेवल ही अलग ही था। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन एंड अबव ऑल। अभी भी मैं बोलता हूँ 50 इयर्स हो गया उनका फिल्म, 65 में अभी तक भी कितना 65 बरस हो गया। हाँ, तो अभी देखो इतना बरस के बाद भी वेरी फ्यू पीपल कैन अंडरस्टूड दिस ये उनका एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स। बाकी का तो फिल्म नॉर्मल ऑडियंस के लिए है तो समझ में आते हैं, लेकिन वो समझ में बहुत कम लोग है। पति साहब ही वॉज द फादर ऑफ न्यू वेव सिनेमा, वी कैन कॉल इट ए फादर। और आपने जो कुछ आर्टिकल्स जो लिखा है पति साहब के ऊपर, वो लॉस एंजेलिस में भी some students has read that, I think, according to my knowledge, and he has appreciated, I think, your articles, and the credit goes to you. No. No, of course, No, of somebody course. has done something. No, but you have done actually that that also, It and was based on somebody's work. नहीं कुछ भी हो, लेकिन करने वाले बहुत लोग को है ना, समझ के ये सब बात करना, it is credit goes to, and you deserve for that. You have taken a lot of pain for this great man, and yes, I am very proud of you for that work you have done. और फॉरेन से भी आपको लेटर्स ये इसके बारे में आपके आर्टिकल्स पढ़ के जो लेटर्स आते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि और पति साहब इज़ all over the world is actually we are spending whatever work he has done, we are actually No, one sending. student from JNU, अच्छा she was preparing a paper on Pati Saab. अच्छा एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स के ऊपर। हाँ, अच्छा, तो वही she didn't get any information because उनके समय के बहुत ही कम लोग हैं. So I thought, why not do a oral history? नहीं वो तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, it is a very good thing, and I am very I wish happy. somebody would write a book on him. हाँ, yes, I think so, but if and you can do it actually. No, I've approached her daughter, Sipra. She's in USA right now. So But he's doing that. So I asked her, why don't you write a book? Correct, correct. And all the materials you have already, mostly material you have collected it. So you can give that some material, Yeah, which, definitely. and definitely she will do something. If somebody wants to do something, then they will, whatever material I have, No, but I'm happy to provide it to I'm sure that she will take this Initiative. initiative, and she will do it. I'm sure. But one thing I don't understand, उनका जो experiment, and that too from a public body. हाँ, वो तो डेयरिंग है उसको। पति हैज़ गॉट दैट नैक हाउ टू गेट अप्रूवल सच टाइप ऑफ फिल्म्स। नहीं तो परमिशन मिलती नहीं है ना ऐसी फिल्म करने के लिए, गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग परमिशन, बट ही हैज़ गॉट गट्स। और वो पति का ये था कि एक करने का है ना, तो ही गोज अप टू द एंड। ऐसा नहीं बीच में छोड़ के जाया हुआ नहीं होता है, वो उसने ऐसा किया ऐसा, उसके पीछे जाकर ये सब करके कैसा भी करके ये करके लेके आते थे। अभी वो तो फिल्म विजन में और एक वो कम से कम और एक 5-10 बरस होते थे ना ज़्यादा उनका लाइफ, तो एफडी कहाँ से कहाँ जाता था। नहीं आपने अब इसमें
उसका ये मैंने जो कहा था ना, दूरदर्शन का भी और फिल्म डिवीज़न का मर्ज करके, तो उनका एक आइडिया भी था कि अपने इधर के सब जो एडिटर्स है, असिस्टेंट एडिटर्स है, असिस्टेंट कैमरामैन है, दे कैन बिकम ए कैमरामैन डायरेक्टली, क्योंकि इतना एक्सपांशन अपने हाथ में था। सभी इंडिया में वो दूरदर्शन का केंद्र तैयार ये करने के लिए फिल्म डिवीज़न को मिलता था, और पति वॉज रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो बोलते कि अपने सब लोगों के लिए अच्छा है, ये हमारे लोग असिस्टेंट है, वो मेन असिस्टेंट से ऊपर का पोस्ट मिलेंगे, ऊपर का पोस्ट है वो हेड बनेंगे, तो अपने लोगों के लिए अच्छा है ये। बट some officers or some people they do not want to take that burden. नेचुरल बर्डन आता ही है ना, इतना सब एक्सपांशन इतना है, वो इससे ज़्यादा डबल काम अपने ऊपर लेने का, ये बहुत थोड़े लोगों को लगता है वो कि हम कुछ करेंगे, तो लेकिन वो नहीं हो गया। लेकिन मुझे तो लगता था कि होता तो बहुत अच्छा था। एक दिन और एक मैं बात आपको कहने के लिए भूल गया हूँ, ऐसा ही हॉस्पिटल में मिलने के लिए मैं गया था, ही वॉज ऑन बेड, तो मैंने पति साहब को बोला कि पति साहब आप जल्दी आ जाइए कि वो कुछ ना कुछ ज़रा एनिमेशन के बारे में आप ज़रा ये करेंगे तो और भी एक्सपांशन करना चाहिए, और आप होंगे। उस टाइम ही वॉज द प्रोड्यूसर, डिप्यूटी चीफ प्रोड्यूसर थे मुझे लगता है। तो मैं आपका सजेशन चाहिए क्या करना है, तो पति साहब ने बोला कि अरे why don't you make propose, you send the proposal for the expansion of the cartoon film unit। तो मैंने बोला कि मैं डबल, अभी जो 4 फिल्म्स बनती है उसे डबल करूं। अरे क्यों नहीं, जितना चाहे वो आपका, जो यू जस्ट थिंक एंड सेंड द प्रपोजल। तो मैंने बोला कि पपेट का भी उसने, पति ने कहा कि मेरा ज़माने में मुझे करने का था पपेट का भी एक दो प्रोडक्शन, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज 3-4 बरस के अंदर मैं आई बिकम ए प्रोड्यूसर। तो आप यू जस्ट सेंड दैट प्रपोजल। तो मैंने कहा कि मैंने 2 फिल्म्स पपेट के लिए और 2 एनिमेशन के लिए, ये 4 प्रोडक्शन, अभी 4 है, उसके डबल हो जाएगा। तो उसका अलग अलग प्रपोजल, कितना आर्टिस्ट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब मैं आपको लिख के देता हूँ। तो मतलब कि लिख के दे दो और सेंड इट टू मी। तो मैंने उसके बाद 1-1.5 बरस के बाद मैंने रिसर्च चालू किया कि क्या, मेरे दोस्त भी थे अपना ऑफिस फिल्म डिवीज़न में, हमारे कार्टून डिपार्टमेंट में मेरे जो कलीग्स थे उनके पास से मैंने जो डिस्कस किया, राममोहन के पास डिस्कस किया, भीमसेन के पास डिस्कस किया, स्वामी के साथ डिस्कस किया, और वो सब करके मैंने, हमारा ये सामंत साहब भी थे, वो वेरी फॉन्ड ऑफ पपेट एनिमेशन, तो ये सब के साथ डिस्कस करके मैंने स्टडी किया। 1 बरस लगा, ऐसा तो इमीडिएटली मुझे नहीं कर पाया मैं, 1 वर्ष 2 बरस 1.5 बरस हो गया। वो हंसते हंसते मैं सब सेटअप करके तैयार करके रखा, और मैंने वो प्रपोजल भेज दिया। पति वो दैट टाइम अगदी लास्ट स्टेज में थे, तो उसने सही किया था प्रपोजल के ऊपर, लेकिन उसके स्टेज के बाद वो फाइल वो जाने के बाद बंद करके रखा। बाद में कभी निकाला, फिर बाद में 2-3 बरस के बाद वो फाइल आ गया ऊपर, ऐसा नहीं कि एकदम, लेकिन वो जो प्रायोरिटी था उस टाइम जो मिला था, दैट टाइम ही हैज़ गिवन प्रायोरिटी टू माय सजेशंस। तो वो पति जाने के बाद वो बंद हो गया, और बाद में 2 बरस के बाद वो अप्रूवल हो गया, पति का सही भी था, वो सब अप्रूवल हो गया। वो फिल्म सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली में वो फाइल चला गया, अप्रूवल वाज गिवन इवन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर से वो डबल और एक्सपांड करो, 2 ज़्यादा पपेट फिल्म्स और 2 एनिमेशन फिल्म्स, और यानी 4 प्रोडक्शन के था, 8 प्रोडक्शन, और स्टाफ का भी ये बढ़ाने के लिए वो प्रपोजल अप्रूवल किया। उसके बाद दूसरा और क्या हो गया कि बाद में आई बिकम प्रोड्यूसर एंड आई रिटायर्ड। आप कब रिटायर किए? मैं 94 में रिटायर हो गया।
तो वो जब अप्रूवल आ गया तो आई वॉज आउट ऑफ फिल्म डिवीजन, तो नो बडी वॉज टेकन टू फर्दर जो सब लफड़ी करना, अपना जो ये करना पड़ता है ना, उसके पीछे जाना पड़ता है, कुछ काम करने के लिए वो मेहनत करना पड़ता है, प्रपोजल भेजना पड़ता है, उसका बजट कितना होगा क्या, वो सब डिटेल्स और मिनिस्टर ने मांगा था कि ये इतना भी ऐसा कितना बजट होगा, क्या होगा, कितना ये होगा, और डिटेल उनको चाहिए था। हमने तो भेज ही दिया था, बट दे वांटेड सम क्वेरीज एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, बट नो बडी हैज़ टेकन दैट फर्दर इनिशिएटिव। एंड मैं तो रिटायर हो गया, तो बट वो भी होता था और पति होता था तो डेफिनेटली वो हो जाता था। मैं रिटायर होता था भी, पति होता था उस टाइम ही जल्दी होता था, और तब तक वो डबल प्रोडक्शन का जो और पपेट का फिल्म भी तैयार होता था, प्रोडक्शन एनिमेशन पपेट का प्रोडक्शन और रूटीन 2 और फिल्म्स का प्रोडक्शन। तो ये भी नहीं हो गया, बस कुछ तो होता है दुनिया में, ऐसा होता है। आप मन में जो कुछ हम सोचते हैं सभी चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई होती है कहीं नहीं होती है, और इट्स ऑल ए गेम। वो कुछ थेरेपी था ऐसा कुछ कैंसर का, जो मुझे इतना उस टाइम का इतना ये नहीं कौन सा ट्रीटमेंट चालू था, लेकिन ट्रीटमेंट चालू था। तो मैंने भी कहा कि अभी ये हो ठीक हो जाए, हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं। और वो इतना इसमें भी खुद ड्राइविंग करते थे, इसका इनका करेज इतना था। आदमी कोई पेशेंट ऐसा कोई भी ये नहीं करेगा कि ऐसा ऐसा होने के बाद भी खुद ड्राइविंग करके जाएगा और ये करेगा, तो इसका पावर, विल पावर बहुत स्ट्रांग था पति साहब का। अब उनके घर गए, उनके मैडम से और बच्चे का कुछ मेमोरी याद है? मैडम का खाली ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि मिसेस पति करके बोलिए फिर से। हाँ? मिसेस पति करके फिर से बोल दीजिए। मिसेस पति के बारे में तो खाली मेरा उनका ज़्यादा ये नहीं था, कैसा है भाभी, कैसा है, इतना ही अच्छा। खाना होने के बाद मैंने इतना ही बोलता था, अच्छा अरे क्या है आप खाइए आराम से, इतना ही। बाकी कुछ ऑफिशियली और बाकी कुछ नहीं होता था। बच्चे के बारे में भी मेरा उनका ऐसा खाली आया कैसा है ये इतना ही, बस वो अपने खेलने के लिए जाते थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम। आई थिंक वो बड़ी कुछ 5-7 बरस की थी और एक 4 बरस की, 5 बरस की, कुछ छोटी सी। तो इसलिए तो वो तो खेलने वाले का उनका टाइम था ना, तो उसका उनके साथ तो ज़्यादा कभी हाय कैसा है अंकल, ऐसा कुछ वो करते थे, हम भी ऐसा करते थे। तो लेकिन हम जब उधर जाते थे तो पति यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द डिस्कशन। तो टाइम ही नहीं मिलता था ना, मिसेज के साथ बातचीत करो क्या इनके साथ करो, टाइम भी कम होता था, ऑफिस में तो मिलता नहीं था, इधर तो 2 दिन मिलते थे छुट्टी के टाइम, नहीं तो ये ऐसा, तो उस टाइम खाली हम डिस्कस करते थे। तो उसका लास्ट मोमेंट कैसा मालूम हुआ जो गुजर गए, क्या हुआ हॉस्पिटल? क्या एक्चुअली एवरी अल्टरनेट डे, एवरी वीक कुछ ना कुछ न्यूज़ आती थी, अभी बहुत ख़राब है तबीयत है। तो बहुत से लोगों ने तो ये किया ही था कि अभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फ्रॉम दिस। तो मेंटली मोस्ट ऑफ द स्टाफ, एफडी स्टाफ प्रिपेयर था। एक ना एक दिन पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतना ही था। लेकिन वो स्पेशली दिस फॉर लास्ट स्टेज में जो था उनका पीरियड, कम से कम मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा, महीना था अप्रॉक्सिमेटली। वो महीने में जो बातचीत स्टाफ ये वो जो करते थे, थोड़ा बहुत बीच बीच में समझ में आता था। मैं भी वीकली 1 दफ़ा तो मैं जाता ही था उनके पास। तो कौन से हॉस्पिटल? टाटा कैंसर इसमें भी थे पहला। इसमें बिगिनिंग में ही वॉज इन नानावटी इन द बिगिनिंग। डिटेक्ट होने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है क्या उधर थोड़ा सा डाउट आ गया, तो बाद में दे लिए शिफ्टेड तो कैंसर हॉस्पिटल में ही था वो। तो लास्ट महीने में तो बहुत से लोगों को पता ही था कि बस अभी कितना दिन होता है पता नहीं, कितना दिन ये हो जाएगा। और
लास्ट डे के बारे में मालूम है फन डे में आपसे? लास्ट डे लास्ट डे में तो क्या, एवरीबडी वॉज स्टन। चांद न्यूज़ कैसा मिला आपको? न्यूज़ क्या, वो अभी तो ये हो गया है ना, इमीडिएटली लोग आ गए कि उनका हॉस्पिटल से ये आ गया, फ़ोन आ गया अपना चीफ प्रोड्यूसर को, ऐसा है, ही इज़ नो मोर। इमीडिएटली ही हैज़ स्प्रेड दैट न्यूज़ टू ये। और मुझे लगता है हाफ डे कुछ इमीडिएटली ये सब लोगों को इकट्ठा बुलाया, और होमेज का ये कुछ प्रोग्राम था, वो दैट वाज अ चीफ प्रोड्यूसर का, और उनका वो लेवल पर सब हो गया। वी आर ऑन ऑडियंस, सब स्टाफ जो थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। मैंने सुना था कुछ महाराष्ट्र बंद हुआ था वो नहीं मुझे मालूम, वो मुझे आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो दैट। अच्छा, और एक बात है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लिए कोई आप 17 कब रिटायर किया? 94 में। 94 में कुछ फिल्म बनी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जो खास प्रोजेक्टर, खास ऑडिटोरियम बनी थी, बीबी गिरी ने इनागोरेट किया था, 3D फिल्म। नहीं नहीं, 3D फिल्म बनाए थे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आई डोंट रिमेंबर दैट थिंग। मुझे श्याम बेनेगल के साथ कुछ उनका ये था, कमल अमरोही। श्याम बेनेगल की का तो उनका अच्छा था, लेकिन आई हैव नॉट, मैं श्याम बेनेगल और ये पति साहब ऐसा इकट्ठा ऐसा कुछ मुझे ये नहीं है बीच में। India of my वो तो dreams मिलता को है, dream वो के तो बाद कुछ मिलते मालूम है थे, कुछ खास? खाली अभी सचिद रे हाँ। बाय लकीली ही केम टू माय सेट। जो स्टेज था, हमने जो पेंट किया था वो सब इसमें लकीली, नहीं तो फिल्म के बारे में कुछ मालूम? 3D? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो मालूम नहीं तो मुझे इतना बोलना भी ये नहीं है ना, सॉरी। जो नहीं जो मालूम है वो तो मैं कैसा ये कर सकता हूँ, डिटेल कुछ उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है।